Assalamu alaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Castell's World Online. And today we are going to learn about the practical strategies that are very useful for high impact teaching in low resource classrooms. Classrooms where budgets are tight, but the enthusiasm and the teacher's motivation is very high. Today we are going to create help. Today we are going to help teachers create powerful learning experience without expensive resources. It could be either AI, it could be either digital tools or low resource materials that are available, readily available here and there, and we can utilize in our day-to-day classroom operations. सो आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी उस प्रेजेंटेशन में हमारे पास स्कूल टीचर्स हैं। हम उनको केटर करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि वो क्या इश्यूज फेस करते हैं, और उसके साथ हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए क्लासरूम को गेमिफाई कर सकती हैं, क्लासरूम्स में मोटिवेशन लेकर आ सकती हैं, अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पे एक अच्छा लर्नर बना सकती हैं, और किस तरीके से एक ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप से स्टूडेंट एक्टिविटी बेस्ड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की तरफ ट्रांसफर कर सकती हैं, दैट टू इन लो रिसोर्सेज। तो आज की प्रेजेंटेशन और आज का वेबिनार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके बाद अब इंशाल्लाह हम जैसे जैसे हमारे व्यूवर्स आते जाएंगे फिर हम इस सेशन को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। टिल देन हम एक एक ब्रेक लेंगे, और उसके बाद हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपसे मुलाकात होगी। So we will be taking the chats as well and the presentation as well. I'm going to share my screen, but since I'm going to start my screen and I would be taking the icebreaker activity and all, I would like to quickly get some sort of introduction from you all. Maybe tell me about which classes are you teaching? What are your expectations from today? How are you feeling today? The chat box are open, and anybody can unmute themselves as well if anybody wants to speak up. So we will be started getting to know each other. um, अगर हम एक दूसरे को जानेंगे, ऑडियंस को समझेंगे, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ, एंड देन वी विल बी proceeding with the session inshallah. So if anybody wants to introduce themselves. Junaid Muhammad Khan is saying that he's teaching class ninth and 12th commerce. Miss Mehna Siddiqui, I teach class ninth and 10th. I am teaching pre-primary. Today was our first day after vacations. Yeah, okay. Urdu teacher, middle section. So we have a plenty of teachers ranging from like secondary classes and pre-primary and kindergarten. And most of you all are from Shah Vilayat, right? And one of our very dearest participant from the press has joined us. Tahira, I can see you. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। मेरा नाम ताहरा नासिर है, मैं कराची ग्रामर स्कूल से हूँ। और सर आपके अप्रिसिएशन जो है वो मुझे हमेशा ही मेरी एनर्जी को बहुत बूस्ट करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। करें, बहुत अच्छी बात है। ताहिरा हमारी जो है वो प्रीवियस सेशन से जो है हमें ज्वाइन कर रही हैं, तो उनके लिए थैंक यू कि उन्होंने टाइम निकाला और उन्होंने ज्वाइन किया हमें। Natasha Suri, I teach English literature and languages to classes 7 and 9th. ठीक है, so we have a plenty of participants. We have 18 right now, and I would request all others to join us meanwhile. So today, before because क्योंकि शाह विलायत से काफ़ी ज़्यादा टीम है और हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है, so I would quickly like to introduce my organization and my journey, how I became a teacher's trainer, and why this journey is so important for me, and why I'm offering these sort of courses to the teachers so that they can make and create powerful learning experiences in their classrooms. So this is this organization called Kestrel's World Education System, which I started in 2020. Um, and it was the COVID, and I was in a university as a student. I was a student at that time, and I was teaching in metric students, 9 10 students of students. So तो मैं उस वक्त एक ऐसे फेस में था जिस वक्त मैं रियलाइज कर रहा था कि टीचर्स और एज ए स्टूडेंट मैं क्या चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज यंग, आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ द डिजिटल टूल्स।
तो जो टीचिंग स्ट्रेटजीज मैं अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर पा रहा था अपने स्टूडेंट्स के लिए और जो मैं उनको पढ़ा पा रहा था, वो मैं अनफॉर्चुनेटली मिस कर रहा था अपने यूनिवर्सिटी टीचर्स में और फैकल्टी में, कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हमें उस लेवल पर। एंड एट दैट टाइम आई फाउंड द गैप, that there is this a significant gap of a digital awareness among the teachers. Maybe because of that they are not being aware, or maybe they are not being trained enough, because they have been teaching in such a traditional style for so long that they have been used to of a certain method, that they are unable to maybe unlearn those techniques and relearn the new way of teaching. And at that time there was a point and there was a discussion happening, that is it going to be always, is it a new normal, and are we even able, become are we going to be normal or not? तो जो सिचुएशन थी उस वक्त, उस हिसाब से अ, ये एक इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ जिसकी बुनियाद यही थी कि हम अपने टीचर्स को और अपने एजुकेशनिस्ट को एजुकेटर्स को केपेबल बनाएं इस चीज़ के लिए कि वो अपनी क्लासरूम्स को अपने 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 क्लासरूम को डिजिटलाइज कर सकें। ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी थी। बाय दैट टाइम, obviously over the time passes and I became an engineer. I'm a chemical engineer by profession. I'm working as assistant manager production at Pakistan Beverage Limited, which is a Pepsi Cola franchise. So what we do there is, basically I'm assistant manager production, so I'm directly involved in the production of the Pepsi Cola brands. We produce Pepsi, 7 Up, Mountain Dew, energy drinks, Sting, and sports drink, Gatorade, and or other basically Aquafina and all. So we manufacture that at our plant. So I have an industrial exposure as well, and previously I've worked for Gul Ahmed Textiles as well, where I work for the sustainability, and sustainability is something is very close to my heart. Even at Pakistan Beverage Pepsi, we are working towards a lot of sustainability projects, and water being one of the most critical and crucial um, resource of our country, and especially city like Karachi. It's very close to my heart, and I have been working with WWF and all other organizations to try to mitigate the issues of water related issues in our city as well. So these are the little sort of things that I have been doing in my capacity. And right now, my motive is to bridge the gap between industry and academia, and try to make educators and teachers understand that there are certain sort of uh, expertise, there are certain sort of skills that an organization wants when they hire a graduate. So I always possess a question to the teaching community, that are we preparing our students to become ready for the future ready markets? So these are the problems, these are the issues that I have been advocating for and I have been working for. So this is my introduction, and I have getting a lot of messages in the chat box as well. So I would like to quickly incorporate those as well. That there are teachers who are teaching computer science. This is Hera Ikra from Shah Vilayat. Yasser is teaching mathematics. Natasha and all. I have that. I have incorporated all those in the previous sessions. Okay. So अब हम आज के एजेंडा को डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या होगा। तो आज की जर्नी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम 6 माइलस्टोन्स पे काम करेंगे। हम सबसे पहले यही डिस्कशन करेंगे कि टीचिंग क्यों चेंज होनी चाहिए, हमारा टीचिंग चेंज होनी चाहिए भी या नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात भी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि हाई इम्पैक्ट टीचर्स कैसे होते हैं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही कि प्रैक्टिकल जीरो कॉस्ट स्ट्रेटजीज क्या हैं हमारे क्लासरूम में, विद इन आवर रिसोर्सेज, लो रिसोर्सेज और इधर नो रिसोर्सेज। हाउ कैन वी strategize our classrooms in a practical zero cost, and what are some innovations? Then there will be some interactive activities, and then there will be AI and digital live bonus. So this will be our quickly today's journey. But let's begin with you. There is this QR code, and a link to the website is going on your screen right now, and I hope it's visible. If anybody can unmute themselves and tell me that the that it is showing. विजिबल है। Visible है, perfect. Visible है. It's going to be a live poll on Poll Everywhere. I'm going to get there. I'm going to live that. आपने इसको सिर्फ ज्वाइन करना है
ज्वाइन करके आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन वहां पर भी आ रहा होगा, अभी यहाँ पर भी आ रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज योर बिगेस्ट क्लासरूम चैलेंज। हम देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपकी क्लासरूम में इस वक्त चैलेंज। अच्छा, और जो आज की प्रेजेंटेशन की थीम है, लो रिसोर्सेस, उसको माइंड में रखते हुए आपने इसका आंसर देना है कि आपको जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, लो रिसोर्सेज ये भी हो सकते हैं कि आपके पास आपके क्लासरूम में टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके क्लासरूम में आपका चैलेंज ये हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो हैं, लेकिन स्टूडेंट इंगेज नहीं होता। या आपकी असेसमेंट है, या आपको लगता है कि यार मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ अपनी क्लासरूम में इंगेज करने के अपने स्टूडेंट्स को, बट स्टूडेंट मोटिवेशन नहीं है। या स्टूडेंट बिहेवियर आजकल चेंज हो चुका है, टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा शॉर्ट है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी क्लासरूम का इस वक्त विद इन द थीम ऑफ और विद इन द थीम ऑफ आज वेबिनार, आपको लगता है आपकी क्लास का चैलेंज क्या है, वो आपने आज जवाब देना है। तो हम चलते हैं और इसको इसको लाइव करते हैं। ये अब लाइव हो चुका है, और मैं अपनी स्क्रीन भी आप सबसे शेयर करूंगा। आप लोग इसको जो अरे सच हो कि मैं इस वक्त मोबाइल पर हूँ तो मैं शायद स्कैन ना कर पाऊँ, तो मुझे इट्स मैं क्या फाइन, चैट इट्स में फाइन। फिर जवाब दूँ? जी जी, आप चैट पे भी जवाब दे सकते हैं, आप ऑडियो पे भी जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल। ऑलराइट, मेरे ख्याल में अब आपके सवाल का मेरे पास जो जवाब है वो यही है कि ये जो आजकल जो तलबा है उनको हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको मुस्तकिल इंगेज रखना, यानी थ्रू आउट द पीरियड। और उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप पढ़ाते पढ़ाते आपको नज़र आने लगता है कि बच्चे हेड्स डाउन कर देते हैं। जैसे उनके उनकी थकन बहुत नुमायाँ नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आप कितनी भी एक्टिविटीज़ करा लें, लेकिन उनमें से 20% 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं, और वो इसकी वजह क्या लगती है ताहिरा आपको? आपको लगता है कि क्या मोटिवेशन नहीं होती, टायर्ड हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं? थके हुए लगते हैं, बहुत थके हुए लगते हैं थके वो हुए थके लगते हुए लगते हैं, चाहे वो क्लास का पहला पीरियड हो चाहे वो क्लास का आखिरी पीरियड हो। आखिरी पीरियड तक तो बिल्कुल उनकी एनर्जी एकदम ही लो हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बस यही देखकर समझ में आ रहा होता है कि ये बच्चे जो है वो बहुत थके हुए लगते हैं। हैं। ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे या तो पूरी रात की जागे हुए हैं, या फिर ये कि जो जो कुछ उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ठीक है। लेकिन ऐसा पूरी क्लास में नज़र नहीं आ रहा होता है। मैं इसको परसेंटेज वाइज ही देख रही होती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी वो बहुत खलती है ये चीज़ कि ठीक ऐसा क्यों है। मतलब है। हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी, इतनी प्लानिंग के बावजूद भी, इतना इंटरेस्ट हमारी तरफ से, हमारा अपना एक बिल्कुल ख्याल बिल्कुल। होता है कि हमने इतना इंटरेस्टिंग बहुत बेस्ट लेसन, प्लान कर लिया हमने, हाँ, लेसन बहुत प्लान बहुत बहुत बेस्ट अच्छा। प्लान किया है, हमारा अपना एक ख्याल होता है। ऐसा है। लेकिन उनके चेहरों से कहीं नहीं लग रहा होता है कि इसमें उनके मतलब की कोई चीज़ है या उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ है। ऐसा उनको है। ऐसा ही लग रहा होता है उनके सामने कोई कोई एलियन खड़ा हुआ है जो पढ़ा रहा है और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा है। कभी कभी अपना बहुत फेलियर सा भी महसूस होता है, कभी कभी की बात कर रही हूँ मैं। कभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा भी लगता है, लेकिन अभी इन दिनों में जैसे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि शायद बच्चे आई बेजार थिंक हो रहे हैं आई या थिंक वो वेकेशंस के बाद भी आए तो थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होने में भी टाइम लग रहा है। हाँ, आई थिंक ऐसा ये ही भी, है, ये भी ऐसे है। ही, क्योंकि ऐसे ही। अभी ऐसा भी हुआ ना कि हम जो है आए, मतलब ये मंडे को आई थिंक स्कूल्स खुले। आई थिंक शाविल आए तो किसी ने बताया कि शाविल आए तो आज से ही उनका पहला वर्किंग डे था। बट आई थिंक जो केजीएस है और बाकी स्कूल्स हैं वो मंडे को खुले, एंड देन ट्यूसडे ऑफ हो गया, एंड देन अगेन ट्यूसडे फिर उस ऑफ हो तरीके गया से, जी, ये हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि चहलों ऐसे की होते वजह हैं। से, हाँ, ऐसा ही हुआ। हाँ जी, अच्छा, ऐसे वजी ही है। वजी का भी आंसर आया है। वजी ने कहा कि स्पेंड जो अटेंशन स्पैन है वो जो है बहुत ज्यादा, मोबाइल कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूली यूज किया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आई वुड लाइक टू, दैट्स राइट, आई थिंक स्टूडेंट्स एंगेजमेंट है। ठीक है। आई वुड लाइक टू अदर पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज कम ऑन द पोल एवरीवेयर, एंड प्लीज do give your answers in this activity as well, if you all can. And if not, chat box would be fine as well. I would love to read the messages from the chat box. Slow response. Focus time is 10 minutes, but they enjoy video based learnings. ठीक है। ये वीडियो बेस्ड लर्निंग पर भी हम बात करेंगे, हंजिला। और अगर आप आगे तक सेशन में रहती हैं तो आपको एक एड पजल की एक वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम एड पजल से वीडियो देखकर हम फ्लिप क्लासरूम मॉडलिंग डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही स्टूडेंट एंगेजमेंट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इधर क्लाउड में क्या आ रहा है, मैं क्लाउड पे भी देख लूँ। रिजल्ट्स जो है, स्लो रिस्पांस हमारे पास आ गया है। आई थिंक मुझे लग रहा है हमारे तो अपने टीचर्स भी जो है ना, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हैं आज। अभी देखें हमारे पोल पे भी जैसे एक आंसर इस वक्त हमारे पास है, हालांकि ये लाइव है। आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि जैसे ज्यादा लोग इसको जो है वो कर पाएंगे। क्या किसी को कोई इश्यू हो रहा है इस पे, मतलब आने में, या सब मोबाइल फोन्स पर है मे बी, इसलिए इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। Yes, basically we are mostly on our mobile मोबाइल phones. फोन्स, हाँ That हाँ is हाँ why हाँ। we need them. ओके 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 ओके, यूजिंग मोबाइल, ठीक है। तो आई थिंक इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर एवरीथिंग कि हम पोल एवरीवेयर पे ना करें। आप लोग अगर चाहें तो मोबाइल फोन पर आप लोग चैट बॉक्स पे बता दें, दैट्स कंप्लीटली फाइन। इट वुड बी इजियर फॉर यू ऑल, कन्वीनियंस हम देखते हैं। ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, आज पहला वर्किंग डे है, हम खुद भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। इनफैक्ट मैं खुद अभी जो है वो 6 बजे ड्यूटी पर आया हूँ। ड्यूटी पर आते ही बस मैंने जो है ना नमाजें पढ़ी हैं, मगरिब पढ़ लिया, बस अब बैठ गया। मैंने कहा सेशन लेते हैं, देन वी विल बी लाइक मूविंग टूवर्ड्स डिनर एंड फिर इशा इंशाल्लाह। तो आई कैन अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। एंड इनफैक्ट आई 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 अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप सबने इतना टाइम भी निकाला है। बहुत बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा हेक्टिक रूटीन के बाद टाइम भी निकाल लें और इस पे बात, कम से कम डिस्कशन करने हम बैठे हैं इस पे। ठीक है, हम इस एक्टिविटी को यहीं पे रोकते हैं और हम क्लासरूम चैलेंजेस के ऊपर दोबारा जाते हैं और वहीं से हम जो है डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ पर थे। और हम, ओके, तो हम अपनी स्क्रीन्स पर वापस जाते हैं और हम प्रेजेंटेशन दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो मोस्टली हमारे पास जो आपके तरफ से जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रिस्पांस आया, वो रिस्पांस यही है कि ज़्यादातर लोग जो है कह रहे हैं कि एक तो स्टूडेंट मोटिवेशन नहीं होती क्लासरूम चैलेंज में। आज आज का स्टूडेंट का जो टाइम अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है ड्यू टू मोबाइल्स इज वेल। हमारे पार्टिसिपेंट मिनहाज ने कहा कि वो मोबाइल की वजह से भी है, स्टूडेंट इंगेजमेंट डिस्टर्ब्ड है और मोटिवेशन नहीं है। अम, और मल्टीपल इश्यूज भी हैं जो डिस्कस हुए। बताया कि हम बहुत अपनी तरफ से हम बहुत कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत ज़्यादा स्लो है। स्टूडेंट्स जो है वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते। मे बी हो सकता है हम वो चीज़ शायद उनको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे जो वो चाह रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रक्षी हसनैन ने जो है वो हाईलाइट किया कि पर्सनल और होम चैलेंजेस भी बाज दफा स्टूडेंट्स के अपने चैलेंजेस जो उनके अपने पर्सनल और घर से वो लेकर आ रहे होते हैं और वो उनके क्लासरूम बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, दैट्स ऑल्सो। और रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मुश्किल से आमादा होते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ये वो चैलेंजेस हैं जो आप और हम अगर क्लासरूम में होते हैं तो हम डेली फेस कर रहे होते हैं। और ये हैं चैलेंजेस हैं। इन्हीं चैलेंजेस को लेकर हम ऑब्वियसली इस एक्टिविटी का मकसद बेसिकली यही था कि हम समझ सकें कि हमारे जो टीचर्स इस वक्त ऑडियंस में मौजूद हैं उनके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं। और वो यही समझ आ रहा है कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर, या स्टूडेंट्स की स्लो होना, या स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन होना, या स्टूडेंट्स का इनडिसिप्लिन होना, जिसमें मल्टीपल चैलेंजेस, उनके रीजंस भी हो सकते हैं। हम उनके रीजन, हम स्टूडेंट को इस वक्त अगर हम यहाँ पे चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो अस्सलाम वालिदैन का वालेकुम दबाव सर। बहुत ज्यादा होता है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, जी जी। एम आई जी ऑडिबल? जी जी, यू आर प्लीज स्पीक ओके। अप। सर आई नीड टू से वन थिंग कि देखें, मुझे ऐसा लगता है वी नीड टू चेंज आवर स्टाइल ऑल्सो। हम्म। हर दफ़ा एक बैच जो आता है वो दूसरे बैच से बिल्कुल डिफरेंट मुख्तलिफ होता है। होता है, मुख्तलिफ होता यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर्स हैं जो 20 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। है। हर साल का बैच एक डिफरेंट चैलेंज के साथ आता है, और अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम 2010 वाले बच्चों को 2026 में पढ़ाएंगे, तो वो हम्म। ऐसा नहीं करेंगे। हम नहीं कर सकते उनको कि बिल्कुल मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और नहीं होगा वो फोकस। बिल्कुल ऐसे इवन ही, वी आर नॉट फोकस लाइक दैट जैसा पुराना टीचर था। ऐसे ही। ट्रीटमेंट ही चेंज हो गया बिल्कुल। तो चैलेंजेस हमारे, हम ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक टीचर के लिए कि वो इन नए बच्चों को कैसे होल्ड करे। हम ये प्रॉब्लम तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम्म। अभी तक हमने इसका कोई सोल्यूशन डिस्कस नहीं किया है। ठीक है। मे भी आप आगे हमें बताएं। लेकिन देखिए ना, हर दफा एक नया पेपर का स्टाइल चेंज हो गया, बच्चा लिखना ही नहीं पैटर्न चाहता। चेंज हो जाता है एग्जाम्स का, मैट्रिक पैटर्न नाइन तो के चेंज हो पैटर्न रहा है चेंज लेकिन कर रहे हैं एग्जामिनेशन बट, पैटर्न तो चेंज नहीं हो रहा ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम बच्चा लिखना नहीं चाह रहा और उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम कह रहे हैं जी यू हैव टू राइट थ्री देखिए ना, ये पेजेस, यू ये हैव टू ऐसे राइट ही फोर बात है। पेजेस।
ये ऐसे ही बात है। मैं अपना एक इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे इंजीनियरिंग में एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम कहते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन बेसिकली ये होती है कि आप एक मॉडल, अब तरक्की हो गई है, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो चुका है, आप डेटा इनपुट करें और वो सॉफ्टवेयर जो है आपको पूरा एक प्लान डिजाइन करके दे देता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ सिमुलेशन। ठीक है। और एक किताब है, जो किताब आपको सिमुलेशन सिखाती है कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर कि आप किस तरीके से वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी एज ए स्टूडेंट कि एक चीज जो अब डेवलप हो चुकी है सिमुलेशन बेस्ड पे, जिसमें सिर्फ मैंने डेटा इनपुट करना है और मैं प्लान डिजाइन कर सकता हूँ। तो मुझे प्लान डिजाइन करने के लिए आप बेसिक तो बताएं, यकीनन बेसिक्स बताएं कि किस तरीके से वो कैलकुलेशन होती है। एज एन इंजीनियर आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ इसका इसका बैकग्राउंड कैसे काम कर रहा है। मगर आप मुझसे एग्जाम में बजाय सिमुलेशन करवाने के, जो कि मेरी प्रैक्टिकल नीड है और इंडस्ट्री में, आप मुझसे एग्जाम ले रहे हो कि किस तरीके से मैं वो कैलकुलेट करूंगा। तो मैं हमेशा अपने टीचर से क्वेश्चन करता था कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, दिस इज एन ऑब्सोलीट मेथड। आप मुझे एक 5वीं एडिशन पढ़ा रहे हो जो 1990 की है, और 2026 का एडिशन में ये चैप्टर खत्म होकर पूरा कंप्यूटराइज हुआ है और वो सिर्फ डेटा स्टूडेंट से मांग रहे हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो तो ये एक बहुत 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 ज्यादा एक बेसिक और वैलिड था। और आपकी थैंक यू सो मच कुलसुम, आपने इनपुट दिया स्टार्टिंग में और आपने कहा कि हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। और वही प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आया था और मुस्कुराया और मैंने कहा कि हम इस टॉपिक पे इधर से ही डिस्कस करना शुरू करें कि क्या हमारा क्लासरूम ट्रेडिशनल क्लासरूम से फ्यूचर रेडी क्लासरूम की तरफ मूव हुआ भी है या नहीं, और क्या ये शिफ्ट अब ऑप्शनल रहा भी है या अब एक जरूरत बन चुका है, मजबूरी बन चुका है, क्योंकि हम क्लासरूम में एक कंटेंट लेकर आते हैं, टीचर आता है, लेक्चर्स देता है, मे बी वो कोशिश करता है कि प्रेजेंटेशन बनाए, मे बी वो कोशिश करता है कि कुछ एक्टिविटीज करे, बट स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट लेवल या स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन वो नहीं है जिसपे वो लर्न करे। स्टूडेंट मेमोराइज करता है अनफॉर्चुनेटली, हमारे एग्जाम्स होते हैं और स्टूडेंट भूल जाता है। दैट इज द ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप। क्या ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप आज के दौर में अब काम कर रहा है? और और इसी को देते हुए मैं कोई भी एक पार्टिसिपेंट अगर वॉलेंटियरली मुझे एक 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 क्वेश्चन और आंसर सेशन में आ जाए, अनम्यूट कर ले वो अपने आप को और मुझे सिर्फ कुछ सवालात के जवाबात दे दे, तो हम इस डिबेट को लेकर आगे चलेंगे और फिर हम इस पर बात करेंगे। इफ एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर कैन अनम्यूट देमसेल्फ just for a few minutes. I would like to ask few questions so that they Tahira, I would appreciate your participation, but since it's going to be the same conversation that we did in the fresh, I would appreciate ऑल if राइट, ऑल anybody else. राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में बाकी टीचर्स को मौका मिलना जी चाहिए। जी जी, thank you so much, Tahira. Thank you so much. So I think Mehnaz, Farah, and Yasir has unmuted themselves. We would take one from we would take Mehnaz. I would like to start from you. Then we would be going towards Yasir and Farah. Yes. Okay, Yes. Manas. Okay, Manas. So my question to all three of you who have unmute, think about a time. आप उस टाइम को सोचें, अपनी उस स्किल के बारे में सोचें जिस स्किल में आपको लगता है कि आप उस स्किल में बेस्ट हैं। इट शुड बी रिलेटेड टू योर वर्क। आप एक टीचर हैं, आप अपने आप को एज अ टीचर जो है वो अभी इस वक्त एज अ टीचर, नॉट एज अ मदर, नॉट एज ए फादर, नॉट एज अ वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, सन, नो। आप अपने प्रोफेशन को रखते हुए रखें, एक ऐसी स्किल अपने बारे में सोचें जो आपको लगता है आप में बेस्ट है, आपने उसको मास्टर किया है, और आप ये सोचें कि वो आपको हमेशा एक कंपेटिटिव एडवांटेज देती है इन फ्रंट ऑफ योर कलीग्स, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, कि यार ये स्पेशलिटी महनाज की है, ये स्पेशलिटी फराह की है, ये स्पेशलिटी यासिर की है, और आप समझते हैं कि उस स्किल ने आपके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प की है। ये सिर्फ आपने अपनी अपने जहन में सोचना है। आप तीनों सोच लें, जिसने भी पहले सोच लिया वो मुझे उसका जवाब देगा कि वो कौन सी स्किल है। क्या लगता है आपको कि आप सबसे बेस्ट किस चीज में? Yes, sir. May I speak? यस प्लीज Am I यासिर। audible? जी जी जी, यू आर वेरी मच Yes. ऑडिबल। सर, सबसे पहली चीज़ यह है कि जो मैं समझता हूँ वो है, एडेप्टेबल हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और ठीक है। मैंने अपने करियर के अंदर जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया है तो उसके अंदर मैं किसी भी इदारे में रहा हूँ तो वहाँ पर मैं जो है वो अडेप्ट कर लेता हूँ चीज़ें बहुत आसानी से।
और परफेक्ट। ये एक चीज मेरे अंदर एक अच्छी स्किल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उस माहौल में मैं ढल जाता हूँ। और काफी मेरे इदारे ऐसे हैं जहाँ मैंने 10-11 साल भी काम किया है। और माशाल्लाह। काफी अच्छी मेरी उनके साथ बॉन्डिंग रही है और आज तक है। और अच्छे लफ्जों में हम एक दूसरे को याद करते हैं। तो एक ये चीज बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरीके से अभी दिसंबर कुसुम भी कह रही थी कि टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, हमें भी अपने आप को इस टेक्नोलॉजी से जो है वो हम जो है वो अपने आप को उनके साथ लाएं। बच्चों के साथ। अब बच्चों को तो बोल देते हैं कि बच्चे जो है वो मोबाइल यूज करते रहते हैं, या बच्चे बहुत हम खुद भी टेक्नोलॉजी तो में करते आगे बढ़ हैं। गए हैं। लेकिन हम हम खुद भी तो कर रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि हम अपनी टीचिंग स्टाइल में, मेथोडोलॉजी के अंदर भी उन तमाम चीज़ों को, या एआई टूल्स की अब बात हो रही है, तो बहुत सारे टीचर्स को ये पता ही नहीं है कि एआई टूल्स के जरिए जो है वो बहुत सारी चीजें, जिंदगी आसान हो गई है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है और उनको इंगेज करने के लिए खास करके बहुत अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू यासर। अब डिबेट और आगे चलेगी। मैं फिर कुछ ज्यादा बोल गया हूँ। नहीं नहीं बाकी नहीं अगली नहीं, मौके इट्स पे। फाइन, इट्स फाइन, it's an open forum. My workshop and webinar styles are always very very collaborative. I give हम्म, chance to everybody to speak up so that we need to understand each other, and we my presentations are always discussion based. So everybody is welcome to नहीं, speak up. And yes, Mehnaz and Farah, would you like to add something? Well, Yes, I want to say. जी, फराह yes, आप कर Farah. लें, देन मेहराज। ओके। Okay. Actually, I'm taking the pre-primary section. The age level is 4 to 5 years. ओके मैम। So ये अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो मेरी स्किल्स हैं वो मैं समझती हूँ कि मैं बच्चे की साइकोलॉजी और उसकी अंडरस्टैंड क्विकली कर लेती हूँ। अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं उस बच्चे को फिर उस लिहाज से लेकर चलती हूँ कि जहाँ पर वो इजीली उस कॉन्सेप्ट को कैच कर सकता है। ठीक है। तो ये और आपको लगता है कि एक्टिविटीज आपको बेस्ड होते हैं। एडवांटेज देता है, आपको एडवांटेज देता या है बाकी, जी ओके। आपकी टीचिंग में आपको एडवांटेज देता है। ठीक है, ये जी। आपकी स्किल है जो आपको लगता है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फराह। मेहनाज। जी, आई वुड थिंक कि मेरी जो स्किल या मेरी जो पॉजिटिव है वो मेरी सब्जेक्ट नॉलेज है। और उस सब्जेक्ट नॉलेज को टू अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास लेके आना, ये मेरे ख्याल से एक स्किल है। और मैं इसको बहुत तेजी से अडेप्ट कर लेती हूँ। यू नो दैट वी आर गोइंग टू डिफरेंट क्लासेस। क्लासेस कभी आपको कंटिन्यूअसली। प्राइमरी भी पढ़ाना पड़ता है, कभी आपको सेकेंडरी भी पढ़ाना होता है, स्कूल में जी रोस्टर्स भी चेंज बिल्कुल। होते हैं, वो तो ऑब्वियस है। तो डेफिनेटली नहीं, प्राइमरी तो शायद मैंने नहीं कभी पढ़ाई, लेकिन ये कि सेकेंडरी पे भी डिफरेंट लेवल्स पे वेरी डिफरेंट लेवल्स एज में। के बच्चे होते हैं। तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट नॉलेज को उस लेवल तक लेकर जाना और बहुत तेजी से लेके जाना, आई थिंक आई एम पॉजिटिव ओवर हियर। ओके, थैंक यू। अब आप तीनों को ही एक टास्क दोबारा मिलेगा, यासिर, फराह एंड हम्म, महनाज। अब आप तीनों को जी। ये टास्क मिल रहा है कि आप तीनों के पास एक एक मिनट है, और अब आपने ये सोचना है कि आपने बताई है। यासिर ने बताया कि ही इज अडेप्टेबल। फरा ने बताया कि शी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी वेरी वेल। एंड इन्होंने बताया, महनाज ने बताया कि शी हैज अ गुड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एंड शी हैज दैट पावर टू केटर सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस अकॉर्डिंग टू द लेवल। वो जिस लेवल पर जाती हैं उस लेवल पर जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ा पाती हैं। ठीक है। ये इन्होंने तीनों ने बताया कि ये वो स्किल्स हैं जिनको एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज देती हैं इन दियर टीचिंग। आई वुड लाइक टू आस्क थ्री ऑफ देम, हाउ डिड दे बिकम मास्टर एट इट। आपके पास ये स्किल आ गई है, आप बोल रहे हैं आप इस स्किल में मास्टर हैं। अब आप तीनों ने ये सोचना है कि आप तीनों में ये स्किल्स आई कैसे, डेवलप कैसे हुई हैं, आपने सीखी कहाँ से, क्योंकि कोई भी सीख कर तो नहीं आता। हम सब एक ऑनगोइंग प्रोसेस से सीखते हैं। तो आपने ये कैसे सीखी, ये स्किल्स कैसे सीखी हैं आपने। और अच्छा, मैं इस दौरान जो है आप लोगों को एक मिनट दे रहा हूं, आप लोग सोचें। इतनी देर में मैं चैट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं क्योंकि चैट्स बहुत इंटरेस्टिंग आ रही थी, मैं बीच में पढ़ रहा था। तो मैं पढ़ना चाहूंगा। जैसे इसमें एक थी सरवत फातिमा, उन्होंने कहा कि आई एम सॉफ्ट स्पोकन एंड स्वीट इन नेचर। तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि ये आपके करियर में आपको कैसे हेल्प कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट से बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती होगी आपकी, स्टूडेंट्स आपके साथ चीजें शेयर करते होंगे, और ये वाली चीज होगी। और आपके लिए भी फिर यही क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू बिकम गुड एट इट। कैसे बनी आप इस सॉफ्ट स्पोकन और स्वीट इन नेचर, कैसे हुई। या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये तो बिल्ट इन क्वालिटी होती है, बट ऐसा होता नहीं है, अक्सर ये किसी से बंदा सीखता है। So आई sir, एम I जस्ट। learned from my experience.
फरहा ने My बोला experience is 20 एक्सपीरियंस. plus. Yeah. ओके. Yes, I एक्सपीरियंस. would also say that it is still my experience. I have more than 25 years of experience in teaching. Definitely, it helped me a lot. It ठीक है. it helped me a lot Over the catering to time, different classes over over the time. How over to the It handle is time you not get the something which can be done experience. in a 1 year or a 2 year. It happens. It comes in this experience comes with the time. Time. Yeah. Time and लेकिन ex. सर एक चीज है, Yeah, देखें, sir. Yeah. जो Yeah. एक्सपीरियंस की बात की जा रही है कि सब्जेक्ट नॉलेज एंड ग्रिप, ठीक है, सही है। सबसे पहली बात कि जब आप टीचर बने हैं तो आपका सबसे मेन जो चीज होती है वो यही होती है कि आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से असेस किया जाता है, तभी आप उस जगह पे खड़े होते हैं जाके कि आपकी हम्म. इतनी सब्जेक्ट नॉलेज है तो आपको हायर किया जाता है। ठीक है, ठीक है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के थ्रू आपको उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन Obviously. एक चीज और, जो हम फी जमाना देख रहे हैं, मैं उसकी बात करूंगा, किसी के लिए पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि हम्म. ठीक है, सब 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस करके आए, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसकी वजह से टीचर्स में एक रिजिडनेस आ जाती है कि वो एडेप्टेबल नहीं होते मुख्तलिफ चीज़ों के। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको अपनी लाइफ के अंदर लाना या स्टूडेंट्स को उस तक पहुंचाना या लर्निंग करना, ये एक चीज़ थोड़ी सी कुछ टीचर्स में आ जाती है कि भाई अब हमने बहुत कर लिया, हम सब जानते हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से बच्चे No, को चलना wrong. चाहिए। नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं. मैं अच्छा, आई मैं वुड कभी लाइक टू कभी मैं क्विकली, किसी आई पर्सनल वुड किसी से लाइक नहीं टू कह नो, रहा। just wait a minute, just wait a minute. I would like to quickly moderate the session. There is nothing हम्म, I also personal know about the anybody. requirement of I the know, new generation. जी जी I know that the जी experienced teachers, but I have seen a lot of experienced teachers who are very much ready to learn. And the one जी। prime example we have is of Karachi Grammar School's Ma'am Tahira. She हम्म, has been a participant of my previous workshops as well. She has a plenty of experience of maybe more than 20-25 years, but she is the one, she's so punctual, she learns a lot of stuff, she participates very well, and she is eager to learn. So it's very from person to person. And also I would like to clarify that Yasser has already mentioned that he's not pinpointing any हम्म, one person जी or बिल्कुल। two Yeah, I right know, but now here. Yes, हम्म, ये वाला भी एक प्रॉब्लम होता है, और ये मैंने यूनिवर्सिटी में फेस किया है कि टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, और वो सर करते हम हैं बाज दफा. इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम बट प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, लेट्स तो गेट बैक टू द प्रॉब्लम्स, टॉपिक, जी, लेट्स फिर गेट बैक उसकी टू द सॉल्यूशन की टॉपिक. तरफ आते हैं। हाँ, let's get back to the topic. जी। You said, Yasser, that you are very adaptable. हम्म, I would like to know the हम्म। answer in a one line or a two line maybe, that how did you become master at it? आपने कैसे सीख लिया? आप adaptable कैसे बन गए? क्योंकि हर बंदे में शायद ये सर क्वालिटी तो नहीं होती, ये adaptability बिल्कुल नहीं. बिल्कुल, ये जी, थोड़ा सा एक ये है कि जैसे आपने शुरू में बोला कि बाय नेचर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, हम्म. और ये मेरे अंदर है शुरू से। और थोड़ी चीज ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एक्सपीरियंस्ड होते चले जाते हैं और आप हम्म. एक माहौल में होते हैं, जब आपने शुरू से टीचिंग की होती है, 15-20 साल हो जाते हैं आपको, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि किस किस तरीके से इवेल्युएशन हो रही है और आपने अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्टेबल बनते रहना है। तो यस, ठीक विद है. द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस, ठीक है. और थैंक यू आपकी सो नेचर में मच. होना चाहिए ठीक अडेप्टेबल। है. Thank you so much everyone for the input. Mehnaz, Yasser, and Farah, thank you so much for participating, and everybody वेलकम else सर। who participated in the chat as well. अब the problem is that कि मैंने आप सबसे पूछा था, और सवाल स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सवाल स्टार्ट हुआ था कि आपके अंदर क्या स्किल है जो आपको कॉम्पिटिटिव एज देती है, आप समझते हैं कि आप उसमें बेस्ट हैं, और आप उसमें एक्सपर्ट कैसे बने. तो जो तीनों आंसर्स थे, तीनों आंसर्स में मुझे जो पता चला वो ये पता चला कि ओवर द टाइम एक्सपीरियंस, हमने एक एक्सपीरियंस किया चीज को, एक्सपीरियंस करते करते हमने उससे लर्न किया, और और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो हम उस क्वालिटी के मास्टर बन गए. ठीक है. अब आप ये नोटिस कीजिएगा, ये मैंने अपनी पिछली वर्कशॉप में भी जो है ये एक एक्सपेरिमेंट किया था. नो बडी हैज एवर आंसर्ड कि मैंने फला क्लासरूम में फला टीचर के लेक्चर में ये बात सुनी थी और मैं उस लेक्चर की मदद से एक्सपर्ट बन गया. And this is the problem of the traditional classroom, and this is why I have did this exercise. और मैं ये मल्टीपल, ये प्रोफेसर प्रोफेसर यूरेक करके एक हार्वर्ड में प्रोफेसर होते थे, ये वो एक्टिविटी करते थे अपने सेशंस में, और वो लोगों से पूछते थे कि वो कैसे एक्सपर्ट बने. कभी भी इसकी ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, कभी भी आप किसी जगह पे ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, आप जाकर पूछें लोगों से कि वो किस तरह एक्सपर्ट बने.
कभी भी कोई ये शख्स नहीं बोलता कि वो लेक्चर से एक्सपर्ट बना है, वो किसी टीचर की एक्सप्लेनेशन से एक्सपर्ट बना है। हमेशा आंसर जो होता है वो रिलेटेबल होता है कि या तो उसने एक्सपीरियंस किया है, विच मींस उसने प्रैक्टिकल किया है, उसने परफॉर्म किया है, उसने वो चीज की है और उसके बाद जो है वो उसमें एक्सपर्ट बना है। तो अब जो हमारी डिबेट है वो डिबेट ट्रेडिशनल क्लासरूम से उठकर स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम की तरफ जाती है। और स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में जाते हुए जब डिबेट हम ले जा रहे हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि स्टूडेंट्स टुडे will not going to learn anything from our lecture. They may need it as a guidance, as a facilitation, but they don't gonna get the concept, and they do not gonna get experience, they do not gonna get expert or skilled just by getting our lectures. So our traditional teaching style is not working anymore. It's just not working because system has changed, the designs has changed, the world has changed, the future of jobs has changed, and so our students and so are us as a teachers have been changed. And this needs to change, और ये चेंज करना है अपने स्टूडेंट एक्टिविटी बेस स्टूडेंट एक्टिविटी लर्निंग से। अब आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर दो क्लासरूम्स के मंजर दिखाए जा रहे हैं, जिसमें एक मंजर पे दिखाया गया कि टीचर बोलता है, मेमोराइज करवाता है स्टूडेंट्स को, पैसिव लर्निंग होती है, कोई एक्टिव लर्निंग नहीं होती, ना कोई एक्टिविटीज होती है हमारी इस तरह की। और उस एक्टिविटी की बेसिस के ऊपर हम अपना एग्जाम लेते हैं, और एग्जाम लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट से अब वो भूल जाते हैं सारी चीजें। आज आप 2 क्लास के बच्चे को बुलाकर क्लास 1 की कोई ऐसी चीज पूछ लें, बेसिक सी भी चीज पूछ लें आप, तो स्टूडेंट को नहीं पता होगी। और ये रियलिटी है। तो शिफ्ट इस वक्त जो हम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेडिशनल क्लासरूम से हटाकर फ्यूचर रेडी क्लासरूम्स की तरफ लेकर जाएं, उसका एक अलग फॉर्मेट है। उसमें हमें स्टूडेंट्स की वॉइसेस को सुनना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स की वॉइसेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स की बातों को सुने, क्योंकि बाज दफा स्टूडेंट्स ऐसी बात भी करेंगे जो शायद अप्रोप्रिएट ना हो, या या जो है वो एथिकली या इस तरीके से राइट ना हो कि हम उसे करें। स्टूडेंट की वॉइस समझने का मतलब ये कि हम बॉडी लैंग्वेज को समझें, हम उनके बिहेवियर को असेस करें, हम उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, और हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करें। अब इन सारी चीजों को किस तरह से करना है, ये हमने अपने अपने सिस्टम में जो है वो लेके जाना है। पैसिव रिसेप्शन से कैसे हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरफ आएंगे, मेमोराइजेशन से हम कैसे स्टूडेंट्स को समझा सकेंगे कि क्या चीज किस तरीके से मीनिंगफुल हो रही है, और किस तरीके से हम टीचर सेंटर्ड क्लासरूम को एक स्टूडेंट ओन लर्निंग एक्सपीरियंस जनरेट करेंगे। इन चीजों के ऊपर आज बात होगी, और यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है कि हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के ऊपर डिस्कशन करें कि ट्रेडिशनल क्लासरूम से फ्यूचर रेडी क्लासरूम्स की तरफ हम किस तरीके से जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम ये सारी चीजें करेंगे। इस स्लाइड को हम बेसिकली स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट पे डेडिकेट करेंगे, और हम बात करेंगे कि एक हाई इम्पैक्ट टीचर किस तरीके से डिफरेंट होता है एक ऐसे टीचर से जिसका इम्पैक्ट जो है वो उस तरीके से नहीं होता। इवन दो वी ऑल आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क, वी आर वेरी वेरी enthusiastic, we are very very much interested in how our students are लर्निंग और नॉट, और हम थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं अगर हमारे स्टूडेंट्स नहीं नहीं सीखते या उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते। मगर रिसर्च क्लियर करती है टीचर की क्वालिटी जो है वो स्कूल फैक्टर के आउटकम्स में किस तरीके से आती है। हमें ये 8 पिलर्स डिस्कस करने हैं जो इम्पैक्ट के हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, अजान हो रही है, मैं खामोश होऊंगा, और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपके पेशेंस का बहुत बहुत शुक्रिया।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि टीचर्स जो है वो हाई इम्पैक्ट टीचर्स कैसे डिफरेंट होते हैं एक 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 ऑर्डिनरी टीचर से, जिसपे हम 8 पिलर्स ऑफ इम्पैक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। ये वो पिलर्स हैं जो हमारी टीचिंग स्टाइल में होने चाहिए, और वो कैसे आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। एंगेजमेंट, हमारे स्टूडेंट एंगेज होना चाहिए। हर लेसन क्यूरियोसिटी स्पार्क करें, एंगेज करें हम अपने स्टूडेंट्स को। और वो एंगेजमेंट नहीं होती, यही क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास आया था। रिलेशनशिप्स, हम लर्निंग को एलैबोरेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए किस तरीके से रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, और वो रिलेशनशिप्स स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, एंड टू करिकुलम भी है। सेकंड, थर्ड, अडेप्टेबिलिटी। हमारे क्लासरूम में डिफरेंट साइजेस ऑफ क्लासेस हैं, किसकी कहीं पे 20 का फैक्टर भी होता है, कहीं 40 और 50 का भी फैक्टर होता है एक क्लासरूम में। आई डोंट नो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या एक रेशो रहता है। आप अगर चैट के जरिए बता सकें कि एक एवरेज क्लासरूम साइज क्या है आपके यहाँ, आपके स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो मुझे पता होना चाहिए, ताकि हम उसके हिसाब से इसको लेके डील करें। कि एक फ्लेक्सिबिलिटी, अब उस अगर 20 बच्चे भी क्लासरूम में, तो उसमें से 5 की नीड्स डिफरेंट है, 5 की नीड्स डिफरेंट है। somebody इज सो इंटेलिजेंट कि वो पहले से पढ़कर आया होता है किताब, और वो पहले से चीजें पढ़कर आया होता है, और वो उस वक्त आपको फैसिलिटेशन में हेल्प कर सकता है एज ए स्टूडेंट। और एक ऐसा भी होगा जिसने शायद किताब कभी घर में खोली ही नहीं होगी, तो हम उस स्टूडेंट को यूटिलाइज करेंगे जिसने पढ़ा हुआ है उसके साथ, जो कि नहीं पढ़कर आया। तो ये मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो हमें देखना होगा कि हर लर्नर के लिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ पर वो किस पॉइंट पर कहाँ कहाँ जो है वो हम उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, ताकि हमारे ओवरऑल क्लासरूम का लर्निंग एक्सपीरियंस स्ट्रांग हो। और पर्पस ये कि हमें ये क्लैरिटी हो कि स्टूडेंट क्यों एफर्ट करेगा, हमें स्टूडेंट को एफर्ट किस तरह करानी है। अब हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह अडेप्टेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट ओनरशिप क्या होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्टूडेंट का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट्स किस तरीके से ज्यादा बेहतर सीखते हैं अपने क्लास में, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, हमारे क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम इस पे बात करेंगे, और इन्हीं 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 स्ट्रेटजीज के ऊपर बात होगी। इस कोड को स्टार्ट करके फिर हम अपने 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 अपनी स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। इट इज नॉट द क्लासरूम दैट क्रिएट्स लर्निंग, इट इज द टीचर। हम क्लासरूम में लर्निंग नहीं करते, टीचर होता है जो फैसिलिटेट करता है इस सेशन को, और इस सेशन को फैसिलिटेट करके क्लासरूम में लर्निंग को जो है वो पॉसिबल बनाता है। और आज सबसे बड़ा मिथ आप सबका मैं तोड़ दूं, अगर आपको लगता है कि आप एक हाई बजट जो है रिसोर्सेज के साथ अगर हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपका बजट बहुत ज्यादा हाई हो, तब भी अगर आप फैसिलिटेट सही नहीं कर पाए, आपने पर्पस आपका सही नहीं था, प्लानिंग आपकी ठीक नहीं थी, आपने शायद क्रिएटिविटी को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं हुए, और अगर इन दी एंड स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं आई, तो आपका हाई बजट क्लासरूम रिसोर्स या क्लासरूम लेसन प्लान भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में कि अगर बड़े स्कूल के अंदर बड़ा बजट है और वो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो है वो हाई टेक इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोट से पढ़ा रहे हैं, मैंने सुना है कि कुछ स्कूल्स में तो अब रोबोट्स टीच कर रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ हमें लगता है कि अगर इसी तरीके से एजुकेशन हो रही है, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी अग्री विद मी कि बजट लिमिटेशन नहीं है। हमारे इम्पैक्ट के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए जीरो कॉस्ट एक्टिविटीज भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी जो है क्रिएटिव थिंकिंग की और क्रिएटिविटी की जो है वो हमें नीड है, और उस क्रिएटिविटी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो हाई इम्पैक्ट टीचिंग साइकिल्स के ऊपर बात होगी, और अब हम बात करेंगे कि एक फ्यूचर रेडी टीचर जो है वो किस तरह क्रिएटिव हो सकता है, एथिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो सकता है। अब इससे पहले कि हम इससे बात करें, मैं चाहूंगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं जानूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक अडेप्टेबल है, रेडी है, और किस लेवल पर आपके यहाँ काम हो रहा है। केजीएस से भी एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि केजीएस बहुत ज्यादा एक ऑब्वियसली एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर जो है वो नजर आता है, वो काफी हाई टेक है, उनका काफी सिस्टम स्टेब्लिश है। तो आई वुड लाइक टू टू इनवाइट ताहिरा
to unmute herself and maybe shed a light that how technology friendly their organization is. And then I would like to quickly ask somebody from the Shavil Ayat as well. And if anybody else from the other organization would like to shed their technology related stuff, तो वो भी बताएंगे. तो I would quickly start from Tahira if she is here. यस आई एम हियर। जी जी करें. अच्छा ऐसा है कि सर मुझे तकरीबन 9 साल हो गए केजीएस में, और इससे पहले मैं एक दूसरे इदारे में काम करती थी। यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ हर क्लास में मल्टीमीडिया मौजूद है, बेस्ट. और जिसकी वजह से ये कि हमारी लेसन प्लानिंग हमारे लिए कदरे आसान हो जाती है, क्योंकि हम बच्चे हर चीज़ वीडियो हो या ऑडियो हो या फिर स्लाइड्स फॉर्म में देख सकते हैं। और अब चूँकि एआई का दौर है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि आपको बच्चों को हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पे। बट इसके बावजूद भी हम हमारा प्लान भी हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजी साथ नहीं देती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अचानक ऐसी चीज़ हो लिमिटेशन. जाती है कि मतलब आपकी स्क्रीन नहीं चल रही है, कुछ भी हो गया, बावजूद इसके कि चाहे लेटेस्ट से लेटेस्ट भी आपका वो लगाया हुआ, तो लेकिन जो बोर्ड और मार्कर वाला सिलसिला है वो ताहाल अपनी जगह पर मौजूद है, और वो हम उसको यूटिलाइज भी करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा लिखे, बच्चे का लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिर्फ कंप्यूटर क्या होके रह जाएगा, वो लिखना भूल जाएगा। तो वो एग्जैक्टली. एक तो प्रैक्टिस ये है। दूसरी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो हाँ, हम बच्चों को एआई का इस्तेमाल सिखाते हैं, लेकिन हम साथ साथ उनको ये भी कहते हैं कि ये आपकी मदद के लिए, आप इनके लिए नहीं है। तो आपको उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो मुख्तलिफ तरीके उनको सिखाए जाते हैं। क्योंकि अगर एक टॉपिक, सपोज अगर मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ या लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, और हम उनको कोई टॉपिक दे रहे हैं और होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, और वो एआई से पूरा मजमून लिख कर ले आते हैं, तो ज़ाहिर है हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने ये पूरा एआई से छापा है, क्योंकि ऐसे ज़ाहिर है वो उसके अल्फाज नहीं है। हर टीचर अपने बच्चे का राइटिंग स्टाइल पहचानती है, ऐसे. और अच्छी तरह से पहचानती है। और जहाँ जिन स्कूलों में उर्दू एक तरह से समझ लीजिए उन बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, यानी कि वो घरों में भी अंग्रेजी में बात करते हैं, तो उनके लिए तो ये तो बहुत मुश्किल और आप जबान लोगों के होती लिए है। ज्यादा चैलेंज होता होगा क्योंकि आप जिस विसिनिटी में, आप क्लिफ्टन कैंपस में होती हैं? मैं सदर कैंपस में हूँ, सदर में होती हैं, ठीक है. ओके क्योंकि ओके. मैं मिडिल सेक्शन में हूँ। तो ज़ाहिर है ओके. ये उस एज के बच्चे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, या कॉलेज सेक्शन के बच्चे हों। ये हम्म. बच्चे पहली इनकी ज़बान ही अंग्रेज़ी, ये बात ही अंग्रेज़ी में करते हैं, सोचते भी अंग्रेज़ी में ही हैं, बोलते भी अंग्रेज़ी में ही हैं। मुझे तो लगता है कि खाते पीते भी अंग्रेज़ी में ही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनके घरों का माहौल भी ऐसा ही है कि ये घरों में भी अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। तो ठीक है. इनके पास वोकेबलरी बहुत कम है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर होने की हैसियत से, कि हमें उनको एक तो रग़बत दिलानी है उस मजमून के लिए। दूसरी बात है कि रही बात आपने पूछा कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लेसन प्लान को इतना पुरअसर बनाएं, इतना उनके लिए पुरकशिश बनाएं कि वो हर हाल में वो उसकी तरफ राग़िब हों। तो इसके लिए वाकई मल्टीमीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अच्छा, बहुत इसके सारे एआई अलावा टूल्स। आप लोगों के पास, मैं जस्ट टू गेट माय नॉलेज, कि जी जी एक तो मल्टीमीडिया हो गया. मल्टीमीडिया तो ठीक है, जी प्रोजेक्टर स्क्रीन है आपके पास और आप वो उस पे जी दिखाते होंगे यकीनन. फिर जी ऑब्वियसली उसमें ऑप्शंस आपके पास 10,000 हैं. आपने तो फिर जो क्या बोलते हैं, वीडियोस भी दिखा देनी है. आप अगर चाहें तो उसमें जी फिर एक्टिविटीज भी करा लेते होंगे, वो आई अंडरस्टैंड जी। दैट. अच्छा, इसके अलावा मोबाइल फोन्स वगैरह प्राइमरी सेक्शन में तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं होते होंगे, या नहीं नहीं, लैपटॉप्स वगैरह, कोई ये तो गैजेट्स ये तो अलाउड नहीं है? ये तो लाजमी है कि हर टीचर के पास उनका लैपटॉप है, और स्कूल नहीं, भी हमें जो टीचर है टीचर फैसिलिटेट का नहीं, करता है। मैं स्टूडेंट्स पे बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि स्टूडेंट्स के पास गैजेट्स स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में चाहता हूँ कि मैं क्विज क्विज लूँ, तो हम्म ऑनलाइन क्विज लेने की उसके लिए ऑप्शन नहीं लैब है, यू मौजूद है। हैव टू ना. उसके लिए हमारे पास लैब्स मौजूद हैं, उसके लिए हमारे पास मल्टीपल लैब्स मौजूद हैं। आईसीटी लैब्स, ओके. जहाँ पर जो कि ज़ाहिर बुकिंग, जिसका एक पूरा प्रॉपर टाइम टेबल है, यानी कि आप उसकी बुकिंग करवा के रख सकते हैं, और आप अपनी जब आपका एक्टिविटी स्केड्यूल हो, प्लान करें, प्लान बेस्ड एक्टिविटी एक्टिविटी होती है. प्लान होता है। हाँ यस, आपका एक्टिविटी प्लान है, तो आप बच्चे आपके, क्योंकि हमारे यहाँ हम बच्चों की क्लासों में नहीं जाते, बच्चे हमारे पास आते हैं क्लासेस में। ओके ओके. सपोज अगर हमारे रूम्स बने हुए जैसे हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में होता है, उस हाँ, तरीके से बच्चे आप लोगों का है. जैसे फिक्स मैथ्स के क्लासरूम. लिए, यस मैथ्स के लिए मैथ, मतलब जो रूम्स हैं उसमें जाएंगे, उर्दू के लिए उर्दू के रूम्स में जाएंगे, तो बच्चे मूव करते हैं, टीचर्स मूव नहीं करती हैं। अच्छा, दैट्स तो इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो वो उनकी मूवमेंट रहती है, जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल में ठीक है. वो उनके लिए ठीक है. बहुत अच्छा भी होता है, और ठीक है. हमारे लिए भी
कि हमारी चीज़ें एक ही जगह पर हमारे पास महफूज होती हैं। ठीक है, तो रही थैंक। बात ये कि क्विज वगैरह में लेना है तो वो हम इजीली ले सकते हैं, हम अपने लैब बुक करा सकते हैं, हम उसमें अपने ले सकते हैं। ठीक इवन है। आप अगर आपको क्लास में भी लेना है तो हाँ, पेपर पेन का भी यूज़ होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल पेपर पेन भी यूज़ होता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज के जितने भी हैं ठीक है। हमारे पास, जो हम जिस ठीक। जिस हद तक कर सकते हैं हम करते हैं। ठीक है, आई वुड क्विकली लाइक टू टेक द वन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम शाह विलायत एज वेल कि व्हाट आर देयर सिचुएशन, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज फ्रॉम लाइक ना कि उसके पास लैब भी मौजूद है, प्रोजेक्टर्स भी अवेलेबल हैं। आई वुड लाइक टू आस्क एनीबडी वांट टू वॉलंटियर एंड अनम्यूट देमसेल्व्स एंड ब्रीफ अस अबाउट व्हाट इज द टेक्नोलॉजी सिचुएशन एट योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास क्या फैसिलिटीज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, ये हमें डिस्कस करना जरूरी है। जी तस्नीम। I am Tasneem and working at Shah Vilayat. I have been working by class by from 8 years, and recently, or you can say since last year, the Shah Vilayat is working a lot on the infrastructure and providing us with all the facilities which can help us in making our classroom very interactive and teaching become more easier. As she said, Miss Tyra, we are now at the senior section level like class 8, 9 and 10, as our students are going to appear at class 10 level, not in the class 8, 11 level. So our senior section is based on 8, 9 and 10. So now we are all classes are provided with the multimedia and the audio facility, ठीक है। and it really makes like I am the teacher of bio and chemistry, and for biology we need a lot of presentations. It ऑडियो becomes विजुअल्स very भी easy, इजी हो जाता है एक्सप्लेन exactly, करना। to show how the system is working, what is happening. Even in chemical reactions, not every reaction we can show in the lab, but it becomes हाँ, very easy to show them through the वीडियोस है multimedia. ना, वीडियोस एंड Exactly, announcement। and videos are playing a lot of role in gathering the attention or activeness of the student. If the student is not showing interest and you start the multimedia अच्छा, or अच्छा, show एंड some ऑल्सो video. तस्नीम, आई वुड लाइक टू आस्क ऑल्सो दैट ऑन अ सेकेंडरी लेवल फिर हम किसी प्राइमरी टीचर से भी, आपके यहाँ के जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी टीचर्स हैं उनसे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास मोबाइल गैजेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, क्लासरूम में अलाउड हैं, या ऑब्वियसली No. अलाउड नहीं होते? आप घर पे इस तरह के कोई असाइनमेंट्स दे पाते हैं ये कि जैसे फॉर सपोज आपने कोई क्विज डिज़ाइन किया आफ्टर द क्लास और आपने उसका लिंक जो है वो किस तरीके से व्हाट्सएप से या किस तरीके से आपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड किया और स्टूडेंट्स को कहा कि वो घर से जो है ये इस तरह की एक्टिविटीज कर कर आ जाएं, इस तरह के कोई आप लोग क्या होता है? जी, एट सीनियर लेवल्स ना हम इस तरह की चीजें करते हैं. अच्छा, ठीक है। प्राइमरी में भी आई गेस ये वाली चीजें होती है, बिकॉज माय किड्स वर बट आई वुड देयर. लाइक टू टेक द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द प्राइमरी टीचर। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बताएं, फिर हम प्राइमरी जी, से तो तो डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ ऐसी चीजें बिल्कुल होती हैं. अच्छा, क्योंकि अब हमें 2 सालों से मल्टीमीडिया है, तो हम देन एंड देयर भी क्विज ना उधर ही हाँ, ऑनलाइन करते हैं, और वो बच्चे उसको करते हैं साथ साथ. गूगल फॉर्म वगैरह के बहुत जरिए। सारी साइट्स हैं हमारे पास, तो ठीक है। हम उसको उधर ही Through अवेल portal कर they लेते are हैं. बच्चे doing the हमारे अच्छा, कर अच्छा, सकते हैं activities. वहां पर. so Shah Vilayat has their own dedicated portal. Okay, okay. Yeah. Sayyid Rafat Zahra Rizvi wants to add something. I would like to take her input, and then obviously we'll move forward. ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम रफ़त ज़हरा, अस्सलाम। मैं हबीब गर्ल्स स्कूल की प्री प्राइमरी की उर्दू की टीचर हूँ। और चले, हमारे यहाँ जो बहुत अच्छी बात है। मुझे हबीब गर्ल्स की तरफ से कोई पहला पार्टिसिपेंट नजर आया है, तो वेलकम टू दी आवर सेशन। आई होप यू मस्ट बी enjoying इट एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टू आस्क कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या जो है वो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरह आप लोग लेके केटर कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हाँ, टेक्नोलॉजी से। जैसे मैंने बताया कि मैं प्री प्राइमरी यानी ग्रेड 1 एंड 2 की उर्दू टीचर हूँ। और हमारे यहाँ भी क्लास में मल्टीमीडिया और इवन के बच्चों की टैब्स की ट्रॉलीज भी होती हैं। अच्छा, और जबरदस्त। तकरीबन सिंस जी, और हम काफ़ी सालों से डिफरेंट ऐप्स पे हम लोग गेम्स जो हैं बच्चों के लिए रेडी करते हैं। पहले हम कोई भी टॉपिक होता है उसको हैंड्स ऑन और रिटन टास्क और डिफरेंट वे से उसको सिखाते हैं। और उसके बाद हम वो ऐप्स जो हैं अपने टैब में पहले उसको बच्चों को सिखाते हैं कि उसको में गेम अपलोड करते हैं और उसके वो थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। और फिर जब उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो हम उनको घर पे भी प्रैक्टिस के लिए देते हैं। चलें। अच्छा, अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग के पास टैब्स वगैरह, अच्छा आपके पास डेडिकेटेड टैब्स हैं?
अपने जी अपने जी स्कूल की प्रॉपर्टी है वो आपके, जी और आप जी लोग जी उसमें प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स रखते हैं या एप्लीकेशंस होती हैं, और आप लोग डिजाइन करते हैं, पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ट्रेन करते हैं, एंड देन आप उसी पे हम्म, परफॉर्म करवा के ले लेते हैं अपने पास, ऐसा? जी जी ठीक है, ये बिल्कुल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके पास मल्टीमीडिया वगैरह ऑब्वियसली हम अज्यूमिंग कि फिर वो तो ऑब्वियसली होगा जब आप इतना आगे निकल गए हैं, टैब्स वगैरह पे भी काम करा रहे हैं। जी जी, और माशाल्लाह हमारे यहाँ ग्रेड 1 एंड 2 का बच्चा इंग्लिश तो नॉर्मली कर लेते हैं, वो उर्दू टाइपिंग भी कर लेते हैं। बस जबरदस्त है, ये तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो मैं देख रहा हूँ कि जय। और आपने अपने स्कूल का नाम हबीब पब्लिक बताया, राइट? हबीब गर्ल्स। हबीब गर्ल्स स्कूल, अच्छा। हबीब गर्ल्स स्कूल की कुछ टीचर्स आई थिंक ताहिरा थी और एक फरा करके भी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। इन्होंने मेरे मेरे पहले कुछ सेशंस लिए, एंड दे वर इवन एट दैट टाइम, 2022-23 की मैं बात कर रहा हूँ, एंड इवन एट दैट टाइम भी हबीब पब्लिक स्कूल वाज लाइक वे अहेड इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कोविड में भी बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी 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 जो ना मैंने चीज़ें सुनी थी, तो ग्लैड कुडोज टू यू टी, आप लोग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे पास है, और वरना मैं शाह विलायत के प्राइमरी सेक्शन की किसी टीचर से या कोई जो अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर हमें प्राइमरी सेक्शन के बारे में बता सके कि व्हाट दे आर डूइंग एट द प्राइमरी लेवल, एनीबडी फ्रॉम द प्राइमरी सेक्शन ऑफ शाह विलायत? अच्छा, इसमें हंजिला नासिर हैं, वो कहती हैं, सी हैं, कहती हैं मैं क्विज बायोलॉजी टीचर हूँ और मैं भी जो है कंडक्ट करती हूँ लाइव क्विज। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन, एंड आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें इस वक्त फिलहाल तो यही था कि हमने ये देखना था कि स्टूडेंट्स किस तरीके से सीख रहे हैं, और मेरी कॉन्वर्जेशन ऑब्वियसली इस तरफ चली गई कि हम टेक्नोलॉजी पे क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स को लेक्चर्स याद नहीं रहते, ये हमने स्टैब्लिश भी किया है इस पूरे सेशन में। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज याद रखते हैं, स्टूडेंट स्टोरीज याद रखते हैं, स्टूडेंट्स देखते जो हैं, जो वो सेंसरी उनकी उनकी एक्टिव होती है वीडियोस के जरिए, वो उससे सीखते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से सीख रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, डिस्कशन से सीखते हैं। तो अब हम बात ऑब्वियसली सोल्यूशन पे करेंगे। और सोल्यूशन पर बात करते हुए ऑब्वियसली डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर बात होगी। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी इनपुट आए। और हम लैक ऑफ रिसोर्सेज पर बात कर चुके हैं कि रिसोर्सेज प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग जगहों के अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। कुछ लोगों के पास टैब्स भी अवेलेबल हैं, कुछ लोगों के पास मल्टीमीडिया भी अवेलेबल है, कुछ लोगों के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। कई ऐसे क्लासरूम्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पेपर, चॉक बोर्ड्स और यही चीजें इस्तेमाल करनी है। आपके पास कलर पेपर्स होंगे, या आपके पास बाज दफा उसका भी बजट नहीं होगा, तो हमने डिफरेंट चीजों को ही इस्तेमाल करना है। मैं इन एक्टिविटीज के ऊपर भी बात करूंगा, बट मैं चाहूंगा कि मैं एक दो एक्टिविटीज जीरो कॉस्ट इनोवेटिव आइडियाज की भी आपके साथ शेयर करूं, जिसका फोल्डर मैंने ओपन करके रखा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं एक दो एक्टिविटीज आपसे डिस्कस करूंगा, बाकी रिमेनिंग एक्टिविटीज ऑब्वियसली मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को थ्रू ईमेल, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है और मैं लाइव डेमो देना चाह रहा हूँ कुछ एप्लीकेशंस का। तो मैंने अपनी एक स्क्रीन शेयर की है, और मैं कुछ कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ जिसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक इंडियन इनिशिएटिव है जो हम डिस्कस करते हैं, मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ अपनी अपने क्लासरूम्स में और अपनी अपने अपने सेशंस में, जिसमें एक्टिविटीज़ होती हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को जो है लर्निंग कराते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, और आई होप कि अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो विजिबल होगा। इफ एनीबडी कैन कंफर्म कि स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपके पास कॉर्नर टाइम लिखा हुआ आ रहा हो। इज एनीबडी देयर? यस, ओके। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब इस पे हमारे पास जो सेल्फ लर्निंग है स्टूडेंट्स की, इसमें लिखा हुआ है द टीचर प्रिपेयर्स अ वीकली प्लान ऑफ अ कॉर्नर टाइम एक्टिविटीज दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी चाइल्ड टू परस्यू एन एक्टिविटी ऑफ हिज और हर choice, labeling each corner creative to indicate the activity develop interest in the student. Some of these corners can be a reading corner, artist corner, language corner, etc. अपने अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। This activity teaches students to utilize their time according to their areas of interest. करना आपने बेसिकली इसमें ये है
कि एक वीकली प्लान बनाया आपने, आपने उसको एक्टिविटी कॉर्नर का नाम दे देना है या कॉर्नर टाइम, वट एवर जो आपकी अपनी क्रिएटिव है। अब ये स्टूडेंट की सेल्फ लर्निंग है, इसमें स्टूडेंट ने अपनी मर्जी की कोई भी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, उस कॉर्नर पर जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉर्नर आर्टिस्ट कॉर्नर है, एक कॉर्नर जो है वो रीडिंग कॉर्नर है, एक कॉर्नर लैंग्वेज कॉर्नर है, एक कॉर्नर मे बी मेंटल मैथ्स कॉर्नर है जहाँ पे मैथ्स की एक्टिविटीज हो रही होंगी। हमने डिफरेंट एक्टिविटीज को लेके चलना है और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कर रहा है और इसमें काफी चीजों को लर्न कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और दिखाऊंगा तो मुझे बहुत बेस्ट लगती है, वो मैं आपको अभी शेयर करूंगा इस स्क्रीन पर। फिर हम इस पे मजीद डिबेट भी करेंगे और आपका इनपुट भी लेंगे। चैट्स मेरे पास आई नो आ रही हैं, मैं इसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट भी करूंगा। बट पहले हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सपी लर्निंग के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, मैं पोस्ट बॉक्स हूँ। ओके, इरिगेशन, यस, दिस वन आई वुड लाइक टू शो यू ऑल दिस वन। स्क्रीन पे आपके पास आएंगी अभी। यस, दिस। अब दिस इज अ वर्टिकल वॉल गार्डन एंड ड्रिप इरिगेशन। अब इसमें इन्होंने किया क्या, इन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाना था कि किस तरीके से जो है वो रिसोर्सेस, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस हैं, इन्होंने डेकोरेट करना है एक क्लासरूम और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज बतानी है, स्टूडेंट्स को सिखाना है कि किस तरीके से लो रिसोर्सेस में रहते हुए या वेस्ट रिसोर्सेज को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दी फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन और गार्डनिंग। तो इन्होंने इसमें क्या किया, अगर अगर कोई देख रहा हो तो देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो तो इन्होंने एक तो वायर्स वाला सेटअप लगाया हुआ है, दूसरा इसमें प्लास्टिक की पेट बॉटल्स हैं जो मे बी रिसाइकल्ड ना हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसको गार्डनिंग किया और दूसरा वाटर सेव करने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें से एक जगह से ड्रिप इरिगेट होकर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉट में जाएगा एंड नेक्स्ट पॉट से वो तीसरे पॉट में जाएगा। तो ये एक बेसिक सी वर्टिकल वॉल गार्डन और ड्रिप इरिगेशन इसने स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का मकसद इस वाली एक्टिविटी में सिर्फ ये है कि किस तरीके से आप लिमिटेड रिसोर्सेस में रहते हुए आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होनी चाहिए। बाज दफा स्कूल के पास स्पेस नहीं होती, बाज दफा स्कूल के पास इतने बजट और रिसोर्सेस नहीं होते कि वो उसको डेकोरेट करें या चीजें करें। तो हम किस तरीके से नो बजट या जीरो कॉस्ट बजट में घर की रहती हुई चीजों में हम इनोवेट करते हुए चीजों को लेकर आएंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट मैनेजमेंट इन स्कूल। अगर अब आपकी स्क्रीन के ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट आ रहा हो तो अब जैसे इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, हमने स्टूडेंट्स को क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे। टॉपिक है इन्वायरमेंटल कंजर्व करना। हमने बिन सेपरेट करी, हमने वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट किया क्लासेस से, रूम से, और कैटेगराइज किया उसको बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल में। हमने स्टूडेंट्स को बायोडिग्रेडेबल का भी कॉन्सेप्ट सिखाया, नॉन बायोडिग्रेडेबल का कॉन्सेप्ट भी सिखाया, और साथ साथ स्कूल में जो एक क्लीनिंग का, कैरेक्टराइजेशन का जो एक प्रोसेस है वो भी हुआ, और हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम डेवलप किया। फिर हमने इसमें ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स की डस्टबिन डिजाइन करनी है, या हम, और वो डस्टबिन डिजाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको डस्टबिन बनाएं सारी, आप जो है वो अपने पास जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, बॉक्सेस हैं, उस पर आप कलर कर दें, उस पर मेंशन कर दें, टैग्स लगा दें कि भाई ये इस जगह पे इस तरीके से वेस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे सिटी लेवल क्या वर्ल्ड लेवल पर, पाकिस्तान लेवल पर भी हम फेस कर रहे हैं, वो हम अपने स्कूल लेवल से अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं जो मैं शेयर करूंगा, बट बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इस वक्त इस वाली एक्टिविटीज को स्टॉप करके मैं चाहूंगा कि हम अपनी उन एक्टिविटीज को डिस्कस कर लें जो कि इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आई नो टाइम थोड़ा ऊपर चला गया है। और मैं चाहूंगा कि मैं लाइव डेमो दूं जो कि हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड किया, अपने अपने आज के सेशंस के लिए डिसाइड किया था। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं उन उन ऑप्शंस में से आप लोगों के लिए किस चीज का लाइव डेमो दूं। तो मेरी स्क्रीन आप सबके पास विजिबल होगी और मैं चाहूंगा कि आप लोग अब मुझे बताएं कि किस तरीके से हम इसको लेके चलें।
Is my screen visible? Unfortunately, there is a technical issue at my end. If anybody can unmute themselves and please speak up, is my screen visible and what you are seeing on the screen right now? No. Acha, okay. Okay, now please confirm if the screen is visible now. Yes. Okay, so you have plenty of options. There are 8 options for you. आप सबने म्यूचुअल डिसाइड करना है. आई कैन गिव अ डेमो ऑन वन लाइव डेमो जिसमें हम आपको कोई एक चीज करके दिखा सकते हैं, जिसमें YouTube से हम कोई भी वीडियो लेंगे, उसको हम इन्फोग्राफिक नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम एक लेसन प्लान बना सकते हैं 2 से 3 मिनट्स में. हम क्लासरूम की वर्कशीट्स बना सकते हैं. और हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे, एआई का इस्तेमाल करेंगे. इट कुड बी ईदर चैट जीपीटी, इट कुड बी ईदर क्लॉड, इट कुड बी जेमिनाई, और इट कुड बी नोटबुक एलएलएम, और इट कुड बी मिक्स ऑफ 2 और 3 एआई टूल्स. हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना सकते हैं विद इन 2 और 3 मिनट्स. हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट बुक चैप्टर को एक्टिविटीज में. हम कोई रूब्रिक डिजाइन कर सकते हैं किसी वेबसाइट को लेते हुए. और ये सारी चीजें हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे थ्रू एआई. तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ और पोल का ऑप्शन आप सबके पास जूम पर ही आ जाएगा डायरेक्टली, और आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आप सबकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक पोल आ चुका है. आप सब उसको वोट करें. वोट करने के बाद जो है आप जो भी मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे हम उसका एक डेमो देंगे. और उस डेमो के बाद जो है एक बोनस डेमो है. यहाँ पर हम अपने फर्स्ट डेमो के बाद जो भी चाहे वो लीव कर सकता है, बट उसके बाद एक बोनस डेमो है जिसमें हमने कुछ वेबसाइट्स रखी हुई हैं, और उन वेबसाइट्स को हम कन्वर्ट करेंगे अपने पास. जो भी आप लोग चॉइस करते हैं. तो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं. हम पहले रन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी मेजॉरिटी होगी हम उसके ऊपर इंशाल्लाह चलेंगे. Due to the shortage of time, I would only select one module only. One for the live AI demo and one for the live website demo. तो जो भी मेजॉरिटी विन करेगी वो हम इस पे करेंगे. अभी 17 पार्टिसिपेंट्स ने कर लिया, 26 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं. हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर. 19 पार्टिसिपेंट्स हम कर चुके हैं और रिमेनिंग कुछ रह गए हैं. 73% हमारी पार्टिसिपेशन हो चुकी है. जैसे ही पार्टिसिपेशन कंप्लीट होगी हम इसको लाइव कर देंगे, आपके पास रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और हम फिर उस लाइव डेमो पर चलेंगे. अभी तक मेजॉरिटी जो है वो कह रही है कि कन्वर्ट एनी यूट्यूब वीडियो इनटू इन्फोग्राफिक नोट्स. इट कुड बी ईदर चैट जीपीटी और नोटबुक एलएलएम. मैं दोनों से दिखा दूंगा अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होता है ना, नोटबुक एलएलएम, और वो दोनों से ही कर देंगे हम इंशाल्लाह. Okay, I think meanwhile rest of the people are not responding, so let's end the poll. Share results. आप सबकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स शेयर कर दिए हैं, एंड इट्स नाउ टाई बिटवीन कन्वर्ट एनी यूट्यूब वीडियो और क्लासरूम वर्कशीट्स इंस्टेंटली. सो लेट्स गो विद द फर्स्ट. हम पहले काम करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं कोई यूट्यूब वीडियो और उसको इन्फोग्राफिक नोट्स में कन्वर्ट करेंगे. मैं चैट जीपीटी से भी बताऊंगा और मैं नोटबुक एलएलएम से भी बताऊंगा, ठीक है. तो हम दोनों करते हैं. हम अब अपनी स्क्रीन पे चले जाते हैं और लाइव चले जाते हैं हम स्क्रीन शेयर पे, ठीक है. तो हम करते हैं, शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन. और स्क्रीन शेयर करके हमारे पास, अच्छा मैंने पहले से ना इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रखी थी, तो मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें जो है वो एक लिंक आ रहा है, ठीक है. हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी. तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए ना, वो चीज़ हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उसकी ट्रांसक्रिप्ट, हम यूट्यूब वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट हम ले लें, ठीक है. तो
अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट भी ले सकते हैं, और नोटबुक एलएलएम के ऊपर तो आप डायरेक्टली वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं नोटबुक एलएलएम भी खोल लेता हूँ साथ साथ, एंड आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कोई एक अनम्यूट करके। यस। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, इस पे तो बहुत इजी है नोटबुक एलएलएम के ऊपर। तो हम, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है बेसिक, आप सबके भी अकाउंट्स बनाना, बस आपने सिंपल वो करना है। अच्छा, अब देखिए, ये आपके पास एक स्क्रीन आ जाती है सिंपल सी, और सिंपल स्क्रीन के ऊपर आपने जाकर सिर्फ लिंक देना होता है। अच्छा, इसमें तो अच्छी बात ये है कि इसमें आप सिर्फ यूट्यूब का लिंक नहीं, आप कोई और भी चीज़ दे सकते हैं, मगर बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि हम यूट्यूब से हम इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे, तो हम इस वक्त यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियो मैंने पहले से एक निकाल रखी थी, वो यूट्यूब वीडियो मैंने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। और फिर हम एक प्रॉम्प्ट बनवाएंगे चैट जीपीटी से, ठीक है। अब हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, हम एक न्यू चैट ओपन करेंगे चैट जीपीटी पर, और उसको हम इन्फॉर्म करेंगे, मेक मी अ प्रॉम्प्ट फॉर ए नोटबुक एलएलएम। I have given it a active learning video for teachers training workshop. Now I wanted a handwritten infographic graphics from it, detailed and covered all the topic. अच्छा, मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, बिलो इज द transcript of the YouTube video extracted from YouTube built-in Gemini for the reference as well. अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चैट जीपीटी से भी करवाना है ये वाला काम। अगर आप डायरेक्टली नोटबुक उससे करवा रहे हैं, नोटबुक एलएलएम से, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। इस आस्क वाला एक क्वेश्चन आ रहा होता है, और इस आस्क वाले क्वेश्चन में आप इससे डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट मांग सकते हैं। यूट्यूब वीडियो पे आपके पास एक बिल्ट इन ऑप्शन होता है जो कि राइट हैंड साइड पे डाउनलोड से पहले होता है, आस्क जेमिनाई का, जिसपे आप इसको बोल सकते हैं आई नीड, और पांच दफा ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड होती है, आई नीड अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। सो आई डिड दिस। द नंबर वन स्टेप इज बेसिकली कि आपने यूट्यूब वीडियो पे जाना है। यूट्यूब वीडियो पे जाने के बाद आपने इससे ट्रांसक्रिप्ट मांगनी है, और वो ट्रांसक्रिप्ट आपने सिंपली बस कॉपी पेस्ट कर लेनी है, ठीक है। ये मैंने कॉपी पेस्ट डायरेक्टली भी कर ली है, और मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखी थी वो प्रॉम्प्ट भी मैंने आपके सामने चैट जीपीटी के सामने भी दे दी है। और अब मैं चैट जीपीटी से नोटबुक की प्रॉम्प्ट मांग रहा हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट चैट जीपीटी से भी जनरेट करूंगा। अच्छा, अब चैट जीपीटी ने मुझे पूरी ये सारी चीजें दे दी है, पूरी प्रॉम्प्ट दे दी है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपली बस मैंने जाकर इस प्रॉम्प्ट को, अब देखें कितनी डिटेल इसने प्रॉम्प्ट दे दी है मुझे, ठीक है। और अब इस प्रॉम्प्ट को मैं जाकर सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगा अपने नोटबुक एलएलएम पे। नोटबुक एलएलएम पे मैंने कॉपी पेस्ट किया, एंड आई थिंक इट्स अ टू लॉन्ग प्रॉम्प्ट, सो रिवाइज। अच्छा, इसमें डायरेक्टली भी ऑप्शंस होते हैं माइंड मैप्स का, स्लाइड और ये सारी चीजों का, बट मैं ऑब्वियसली इसको अभी इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि जो प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गई है वो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी पेस्ट की, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। जितनी देर में ये नोटबुक एलएलएम कर रहा है, डिजाइन कर रहा है इन्फोग्राफिक्स वगैरह, इतनी देर में हम क्या काम करते हैं, हम सेम यही प्रॉम्प्ट जो है चैट जीपीटी से कहते हैं, नाउ यू डू create the same infographics for me. You have all the details.
ठीक है। अच्छा, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो यूट्यूब वीडियो डायरेक्टली नहीं ले सकता, इसलिए चैट जीपीटी को हमें ट्रांसक्रिप्ट देना जरूरी है। जबकि कॉग्निटिव जो हमने नोटबुक एलएलएम दिया है उसके पास अगर हम ना भी देते हैं ना अपनी ये सारी चीजें, तो वो खुद से भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब ये जनरेट कर रहा है, जितनी देर में ये जनरेट करेगा ना, हम इसको देखेंगे जब तक हम चैट जीपीटी पे देख रहे हैं। अच्छा, मीन वाइल मैं एक और पोल लॉन्च कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और वो पोल है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप के लिए। यस, इसको हमने शेयर कर दिया था, रिजल्ट्स भी शेयर कर दिए थे, इसको कैंसिल कर देते हैं और हम नेक्स्ट पोल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पोल पे चले जाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट पोल मैंने लाइव कर दिया है। आपके पास जो है ना मुख्तलिफ एप्स हैं जिनका आप जो है वो डेमो देख सकते हैं, विच इन विच वन इज मेंटीमीटर, दैट इज पेडलेट, एट पजल, वाइट बोर्ड एफ आई, क्विजेज, वर्ड वॉल। वर्ड वॉल की एक्टिविटी मैंने बनाई हुई है, गैमा एआई, और उसके आगे उसके यूजेस भी लिखे हुए हैं कि वो बेसिकली क्या करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आप लोग क्या करते हैं। सिलेक्ट, आप लोग सिलेक्ट करें इसको, इनके रिजल्ट्स पे हम काम करेंगे। अच्छा, Gamma AI is a very, very, very great tool. Even word wall and quizzes, etc. Everything is very great. जो आज की प्रेजेंटेशन है वो पूरी मैंने जो है वो Gamma AI से बनाई थी, तो उस पे आप कर सकते हैं। रिजल्ट्स में ऑब्वियसली आपको दिखा दूंगा जो अभी इन्फोग्राफिक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं चैट जीपीटी पर और इस पर, वो मैं दिखाऊंगा आपको ऑब्वियसली। चैट जीपीटी का जनरेट भी हो गया है, तो चलें चैट जीपीटी वाला आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी कर देते हैं साथ साथ। ये लीजिए, चैट जीपीटी ने इन्फोग्राफिक्स, एक पूरी पूरी एक हैंड रिटन इन्फोग्राफिक्स मांगी थी मैंने, ठीक है, और वो इसने हमें दिखा दी। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी अच्छी आ जाए और आप लोग देख सकें अच्छे तरीके से। हम्म, चलिए मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जो इन्फोग्राफिक्स हमने चैट जीपीटी से बनाया, वो चैट जीपीटी का इन्फोग्राफिक्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और जो वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब की, इट वॉज अबाउट एक्टिव लर्निंग, व्हाट इट रियली मीन्स इन द क्लासरूम। और इसने ये पूरी एक इन्फोग्राफिक्स बनाई है कि हमने वीडियो में देखा वो तमाम हैंड रिटन, मैंने क्योंकि उसको कहा था कि हैंड रिटन सी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए। तो अब उसने वो पूरी एक डिटेल मुझे बताया कि सेशंस उस पूरी वीडियो में है क्या। और आमतौर पे मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के साथ भी यही करता हूँ, पूरा सेशन बनाने के बाद लास्ट में एक हैंड रिटन बनाकर पार्टिसिपेंट्स को शेयर करता हूँ अक्सर। तो इसी तरीके से इन्होंने देखें पूरा लुक्स एक्टिव, बिग पैराडॉक्स, पूरी इसने जितनी भी सेशन के अंदर डिटेल्स थी वो सारी की सारी चॉक डाउन कर दी। यूट्यूब वीडियो की सारी डिटेल्स इसने हमें एक्सप्लेन कर दी कि क्या क्या चीजें हो गई, पावरफुल शिफ्ट्स क्या हैं, की टेक अवेज क्या है, टीचर रिफ्लेक्शंस क्या है। एंड दिस इज जस्ट डन इन अ 2-3 मिनट्स, आपको कुछ करना नहीं पड़ा है बहुत ज्यादा। और ये चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा उसका रिस्पांस, नोटबुक एलएलएम का क्या रिस्पांस आया है, वो भी हम देखते हैं और साथ साथ फिर हम अपनी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
ठीक है, अब ये बन गया है हमारे पास। ये भी जनरेट हो रहा है। मीनवाइल हम देख लेते हैं कि आप लोगों का डेमो पे आप लोगों के क्या रिजल्ट्स आए हैं, किस जगह पे सबसे ज़्यादा जो है वो इंगेजमेंट आई है जो सिलेक्ट हो रहा है। 15 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 53% ने। आई वुड लाइक टू आस्क द रेस्ट ऑफ देम टू प्लीज पार्टिसिपेट इन इट। And meanwhile, the last thing, 29 participants are there, including me. Please leave your name and leave your organization name with in the chat box for the attendance purpose, because it's very hard for me. I have a 50-60 registrations prior to this session, और मैंने ट्रैक अटेंडेंस करनी होगी। तो अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए मुझे आप सबके नेम्स और वो चैट बॉक्स में अगर आ जाएंगे तो वो मेरे लिए सेव हुआ होगा ऑलरेडी। तो प्लीज फॉर द सर्टिफिकेट पर्पस, प्लीज डू इट। जस्ट राइट योर नेम एंड जस्ट राइट योर स्कूल नेम, दैट्स इट। मेरे लिए इजी हो जाएगा। ओके, एंड वोटिंग्स आर स्टिल ओपन, प्लीज डू सो। थोड़ा जल्दी करें तो हम इसको फिर आगे लेके चलेंगे। 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, 20 पार्टिसिपेंट्स में हम इसको क्लोज कर देंगे पोल को। मीनवाइल मैं चैट्स पे देख रहा हूँ कि लोगों के नाम आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बस इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। आई नो एवरीबडी मस्ट बी स्टार्विंग फॉर द डिनर नाउ। There is this one participant, this called SHC Telecom Private Limited. So if they can name themselves, would be very, very appreciable. Okay, let's end this poll, uh, and let's see which one gets the most votes. It's a Mentimeter, and there is Gamma AI. I think we should go for the Gamma AI. I think we should go for the Gamma AI. Mentimeter is a basic, simple app, so Gamma AI I think would be more appropriate. Let's go for the Gamma. And those who wanted to get the Mentimeter, I would give them. They can request me for the another free webinar. I would definitely be giving them the tutorial as well. Let's move to the Gamma AI. Okay. अच्छा, और क्योंकि हम एलएलएम के रिजल्ट दिखाना भूल गए थे, तो नोटबुक एलएलएम में थोड़ा सा लर्निंग माइंड मैप दिया है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आया। मुझे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो चैट जीपीटी का लगा। उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगा। तो आई थिंक एआई में जो है वो चैट जीपीटी, और आई थिंक नोटबुक एलएलएम जो है वो इन्फोग्राफिक्स जो है वो पेड कंटेंट में देता है, इसलिए शायद इस तरह का रिजल्ट है, क्योंकि वो बीटा पे दे रहा है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब हम चलते हैं गैमा एआई पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज की प्रेजेंटेशन कैसे डिज़ाइन की थी। बहुत बेसिक सी प्रेजेंटेशन को आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, और विद इन अ मिनट आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बन जाती है। इट्स एन एक्सट्रीमली इजीएस्ट टू मेक द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम गैमा के मेन पेज पे जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई प्रेजेंटेशन है जो आप सबकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है। ठीक है, ये देखें,
मेरे पास जो है ना पहले से कुछ प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी भी बनी हुई हैं, बट हम इस तरह नहीं करेंगे, हम जो है न्यू प्रेजेंटेशन बनाएंगे और दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट पर। अच्छा, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, आप जनरेट कर सकते हैं, एआई से भी बनवा सकते हैं, एआई आई थिंक पेड होता है, ठीक है। पेस्ट कर सकते हैं टेम्पलेट, अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी अगर कंटेंट है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त टास्क ये था हमारा कि हम गैमा एआई से प्रेजेंटेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। तो मैं जनरेट के ऑप्शन पे जा रहा हूँ, एआई। अब इसके स्क्रीन पेज बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त है। इसकी लिमिटेशंस, फ्री लिमिटेशंस आपको मैं बता दूं कि इसकी फ्री लिमिटेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक वक्त में सिर्फ 10 पेजेस की स्लाइड बना सकते हैं। तो मैं जैसे अब आज की प्रेजेंटेशन मेरी 20-21 पेजेस की थी, तो मैंने सेम फॉर्मेट रखते हुए डिफरेंट टैब्स ओपन किए, सेटिंग्स डिफरेंट अलाइन करी, स्लाइड 1 से लेकर 10 पहले डिजाइन की, फिर स्लाइड 11 से लेकर 20 डिजाइन की, और इस तरीके से फ्री में मैंने जो है वो 10 to 30 पेजेस की स्लाइड्स जो है वो डिजाइन कर ली। आप भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये बोलता है कि आप क्या आप कर रहे हैं। आप सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप कोई सोशल मीडिया पोस्टर बनाना चाहते हैं, आप वेब पेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा टास्क प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आई विल चूज द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। फिर 10 स्लाइड्स हैं फिलहाल, फॉर द सेक ऑफ जस्ट टीचिंग यू मैं इस वक्त इसको 4 स्लाइड्स कर रहा हूँ, बल्कि 2 स्लाइड्स 3 स्लाइड्स कर देता हूँ, सो दैट इट वुड बी ईजियर। स्टाइल्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं क्लासिक और स्टूडियो, फ्री में आपके पास सिर्फ क्लासिक ऑफर होता है, बट ये भी बहुत अच्छा होता है, एडिटेबल होता है, आप पावर पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और आप जो है वो लोगोस भी रिमूव कर सकते हो, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ट्रेडिशनल में आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं कि टॉल हो, ट्रेडिशनल हो। आमतौर पे यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से प्रेजेंटेशंस अगर बनाए तो आप 16:19 पे बनाएंगे, इसके अलावा अगर आपने कोई और साइज करना है तो वो भी। लैंग्वेजेस के भी ऑप्शंस हैं मल्टीपल, बट ऑब्वियसली आई एम चूजिंग इंग्लिश राइट नाउ। अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू मेक। मैं इस वक्त सिर्फ ईज के लिए अपनी पुरानी प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पुरानी प्रॉम्प्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप सबके लिए इजी हो जाएगा समझना और अंदाजा लगाना कि कितनी जल्दी प्रेजेंटेशन बन सकती है। सेटिंग्स भी आ जाती है, मैं अपनी प्रॉम्प्ट्स आपको दिखा पाऊंगा तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, हम इस प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सी, इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन, मैं इस तरह से चैट जीपीटी को मैंने अपनी पूरी, मैं सारा कंटेंट चैट जीपीटी पे पहले कॉपी पेस्ट करता हूँ। जो जो मुझे प्रेजेंटेशन में चाहिए होता है, पूरी डिजाइनिंग मैं चैट जीपीटी के साथ करता हूँ। क्लॉड इज मच बेटर, बट मैं चैट जीपीटी के साथ करता हूँ, और उसके बाद हम इस पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, मैं पूरा स्क्रीनशॉट तक अपलोड करता हूँ। अगर आप देखें, देखें शुरू से, अगर आप देखें ना, मैंने इसको स्क्रीनशॉट दिया, जो स्क्रीनशॉट मेरे पास स्क्रीन पर होता है, और ये फिर हमें उस हिसाब से जो है वो प्रेजेंटेशन देता है। सबसे पहले हम आपके लिए भी वो स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे, और फिर ही हम जो है ना इसको स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ इधर से, जनरेट ऑनलाइन, ठीक है। बॉटम पर जाकर आप सबसे पहले तो एक काम करें, इसने ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, मैं उसको छोड़ दूंगा। सबसे पहले इसका मोड चेंज कर दें, एडवांस मोड, ताकि आपके पास एक 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 अच्छा इंटरफेस आ जाए। राइट साइड पे आपको अगर प्रेजेंटेशन मिनिमल चाहिए, कंसाइज चाहिए, एक्सटेंसिव चाहिए, या डिटेल चाहिए, तो आप कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल डिटेल्ड कर रहा हूँ, कंसाइज कर रहा हूँ, इजी अपनी आसानी के लिए। अच्छा, इसने क्योंकि मैंने पहले से कुछ चीज़ें ना सिलेक्ट की हुई थी, तो पहले फ्री फॉर्म करके इसको डिलीट कर रहा हूँ कुछ अपने पुरानी प्रेजेंटेशन को। आपके पास ये ब्लैक कैनवस होना चाहिए। फर्स्ट स्लाइड आपके पास आ गई है, प्रॉम्प्ट आपके पास है, ऑप्शनल्स हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, चैट जीपीटी मुझे देगा सारी चीजें। इसने मुझे लेफ्ट पैनल पे बताया कि आप जनरेट कर रहे हो, कंसाइज रख रहे हो, राइट फॉर। तो राइट फॉर पे जो उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं सारी चीजें उसको पहले से प्रॉम्प्ट दे चुका था कि मैं किस तरह की ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब राइट पर हमारे पास क्या, राइट फॉर का ऑप्शन आ रहा है। मैं राइट फॉर पे जाकर सेव कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
देन इसके बाद इसने मुझे ऑप्शन दिया टोन, कि टोन कैसी होनी चाहिए। तो वो टोन जो है वो प्रोफेशनल, इंस्पिरेशनल और एकेडमिक होनी चाहिए। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इधर टोन है। इधर भी ऑप्शंस आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आई एम जस्ट रेप्लिकेटिंग व्हाट आई डिड फॉर द टुडेज प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें थीम्स बहुत सारी होती हैं, बहुत मल्टीपल थीम्स हैं, मैं अभी रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप रैंडमली कर सकते हैं। एआई इमेजेस भी खुद से जनरेट करता है एक दो। आप चाहें तो कुछ वेब इमेजेस भी डाल सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल एज इट इज जाने दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इधर इधर ट्रेडिशनल क्लासिक के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं, तो हम यही रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉम्प्ट वो बोल रहा है, तो प्रॉम्प्ट हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे राइट साइड से। ठीक है, प्रॉम्प्ट हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, ये वो ओरिजिनल प्रॉम्प्ट थी जो हमने पहले दी थी, इसको हमें हटाना चाहिए था, हमने हटाया नहीं है। अच्छा, एडिशनल इंस्ट्रक्शन में आप इसको दे दें ये। अब हम कार्ड बाय कार्ड भी कर सकते हैं, और हम एक साथ भी दे सकते हैं। मैं कार्ड बाय कार्ड इसलिए देता हूँ क्योंकि कार्ड बाय कार्ड पे आपके पास कंट्रोल्ड होता है कि आप कौन सी कौन सी स्लाइड के ऊपर कितना कंटेंट रखना चाहते हैं। टोटल हम 3 स्लाइड्स रखेंगे, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंड स्लाइड नंबर 3 मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द ईज, कि बस वो जल्दी से जनरेट हो जाए। अच्छा, मैं चैट बॉक्स अभी देख नहीं रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स पे आऊंगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट कर ले। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको 3 स्लाइड्स पे कर दिया है। ठीक है, और जब मैं इसको सिर्फ जनरेट कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आप इसको ऑब्वियसली जब एक्सप्लोर करेंगे तो वो बहुत डिटेल में आप लोग इसको जो है वो कर सकेंगे एक्सप्लोर। इसको अब जनरेट कर रहे हैं, देखें खुद खुद ब खुद अब जो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, जनरेट होगी ये। मैंने इसकी सेटिंग्स इंटेंशनली थोड़ी डिफरेंट रखी हैं एज व्हाट आई डिड इन द एक्चुअल प्रेजेंटेशन टुडे। ठीक है, और अगर आपको याद हो हमारी प्रेजेंटेशन में, तो ये यही यही से स्टार्ट हुई थी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब ये हमारी 3 प्रेजेंटेशन जो है वो तीन तीन 3 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन जो है वो अभी जनरेट हो रही है, बना रहे हैं ये प्रेजेंटेशन। जैसे ही ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, हम इसको एक्सपोर्ट करना भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप पीडीएफ में या वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैमा हैज फिनिश्ड द प्रेजेंटेशन, उसने बना दी हमारी प्रेजेंटेशन टॉपिक वाइज। ठीक है, और आई थिंक इसने अब की दफ़ा थोड़ी और अच्छी बनाई। और उसके बाद जो है ये 3 पेजेस की, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट को दोबारा जाके रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चीज़ें एडिट कर सकते हैं, स्टाइल थीम सब चीज़ें इधर से चेंज हो सकती हैं। इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, और लास्ट में जो थीम्स हैं वो भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको इस वक्त चेंज करूंगा तो थीम चेंज हो जाएगी। आप डिफरेंट ट्राई करके देख सकते हैं कि भाई मल्टीपल थीम्स हैं, ट्राई ट्राई कर लिया आपने। नेक्स्ट आप शेयर के ऊपर जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में आपके पास जो है वो डिफरेंट साइजेस हैं, चीज़ें हैं। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में भी, पावर पॉइंट में भी। तो हम पावर पॉइंट में कर लेते हैं, और इस तरीके से ये जो है प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी डिज़ाइन हो सकती है विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट्स। तो ये आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे आप पावर पॉइंट में। ठीक है, और ये रेडी हो जाने के बाद खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, वो मेरा सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड हो गई, तो मैं इसको डाउनलोड करके आप सबके सामने शो भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिक्स थी इस चीज़ की। अब हम अपनी स्क्रीन क्लोज करते हैं, और प्रेजेंटेशन को हम एंड करते हैं। लास्ट बस आपसे कुछ रिक्वेस्ट हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल टेक अ लीव।
From now on, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आज के प्रोफेशनल रोड मैप में आप लोगों को जो चीज़ें सीखने को, डिस्कस करने को मिली, आपने आज देखी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको खुद से प्रैक्टिस करें, एक्सपेरिमेंट करें, रिफ्लेक्ट करें और अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं वो शायद मेरे लिए वर्क ना करें, और जो चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं वो आपके लिए ना करें। उसको आप देखें और फिर एक अच्छे मेंटोर बने और लोगों से शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कैस्टर्स वर्ल्ड के साथ आपकी जर्नी कंटिन्यू रहे, तो हम अक्सर फ्री वेबिनार्स, वर्कशॉप्स और सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, स्कूल्स में ऑन साइट ट्रेनिंग्स कराते हैं, और इसके अलावा फ्री समिट्स भी कंडक्ट करते हैं, जो कि रिसेंटली अभी हमारा भी हुआ और इसके अलावा भी होते रहते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा हमारी कुछ अपकमिंग वर्कशॉप्स हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके आ रही हैं। इसमें से एक 14 अगस्त को फ्री वर्कशॉप हो रही है जो कि टीचिंग फॉर अ बेटर प्लैनेट है, जिसमें हम एसडीजीज और सस्टेनेबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और वर्कशॉप है जो कि 29 अगस्त को आ रही है, वो लीडिंग स्कूल्स दैट इंस्पायर है। इसके अलावा कुछ पेड वर्कशॉप्स भी हैं। इसमें से एक खास तौर पे मैं आपको बोलूंगा 11 और 12 अगस्त की सर्टिफाइड एआई एजुकेटर प्रोग्राम है, जिसको हम CAEP कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट एआई एजुकेटर प्रोग्राम है जो कि 2 डेज का वर्कशॉप है, 4 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस हैं, 6 आवर्स का एक्सटेंसिव सेल्फ बेस्ड लर्निंग कोर्स है, जिसमें आप एक एआई की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस कर सकते हैं और बहुत सारे डिजिटल टूल्स को सीख सकते हैं। तो ये कुछ हमारी वर्कशॉप्स हैं जिस पे अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग इन योर प्रोफेशनल ग्रोथ। आई होप एंड आई विश कि अगर हम आज कुछ भी सीखें और हम आगे जाके अपने टीचर्स को, अपने कलीग्स को सिखाते हैं और अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को 1% भी इंप्रूव करते हैं, तो आई थिंक आई वुड बी सक्सेसफुल इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक, दे कैन लीव हियर, एंड इफ नॉट, you are happy to go and have the good dinner. Thank you so much for joining in. Thank you so much, everyone. Those who are interested in the workshop, I would request them to contact me via WhatsApp or email. I will give you all the details there, and you can give me a call and during the working hours as well. I will guide you all regarding that workshops as well. And I would request, if you're not willing to pay an or on a paid workshop, I frequently offer free webinars, workshops, and sessions. Do join them, because professional development should not be restricted to the people who are willing to pay, right? We should always learn from each other, और मुझे बहुत सीखने को मिला। Thank you so much, Shavilaya team. Thank you so much everybody else individually who has taken out time. And I know I asked for a 1 hour, and you all have given me such a plenty of time to learn, and thank you so much everyone. Contact number and emails जो है वो मैं इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें। चैट बॉक्स में बल्कि मैं लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ इस वक्त, 03132450 180, एंड माई email address is kestrel786.edu@gmail.com। ये दोनों चीजें मैंने आप सबको शेयर की। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ चैट्स ऑफ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक, दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड गिव द फीडबैक। Thank you so much everyone for joining in. Thank you so much. And those who wanted to leave, they can leave. Thank you so much for being a part of such a learning journey. I have learned a lot from you, and I wish you all get a very, very successful teaching career and a good academic career ahead. Thank you so much. Thank you. Kulsum, Rukaya, and everybody who's saying thank you. Thank you so much, everyone. Thank you.
Those who want to register and wanted to contact, there are three things: email, WhatsApp, and YouTube. Links and numbers are on the screen as well. So they can contact me from there. Thank you, everyone. The feedback form and everything will be shared via email address, inshallah. So I will communicate about that. Rukaya, I will share the detail. Basically, what I usually do is basically I share the recording of the session and ask the participants to fill in the feedback form. Maybe ask them to fill the feedback on maybe my Facebook channel or my or a YouTube page. So that's how I take and collect feedback. And if you want to give any sort of feedback right now, you can write in in the comment box as well, because I am here for the 4 minutes as well. Thank you so much for joining in, everyone. Thank you so much. Those who are still here right now, I don't know if they have just left their mobile phones on and are not actively listening it either, or maybe they are here and they are actively listening it. In either case, thank you so much for joining us. Thank you so much. So now I will stop the recording, and if anybody wants to feel comfortable and wants to unmute and say any sort of feedback, it would be very, very beneficial for me. Obviously, feedback is a very important part of um, uh, being on learning how to improve yourself.